So, as said, the topic for today is credit appraisal. Uh, the term appraisal is more known as a performance appraisal in the current scenario, and everybody who is working or who is salaried, or majority of the people post MBA who join a job, they are more interested or more keen in understanding what their performance appraisal is going to be rather than the credit appraisals. But the times we are into, the credit appraisal or the credit of an individual person, the credit rating of an individual is going to be very important. So if we look into the current scenario in India, and specifically let's compare it with what is in US. In the developed economies, everybody's daily life and day-to-day life runs on credit, be it their home loans, be it their vehicle loans, be it their shopping, which is by credit card or credit line, be it their travel, everything, their health care, everything is some or the other way related to credit in the developed economies, and the access of credit in developed economies is very high. Whereas if you look into India, the access of credit is very less. So if you want loans or if you want a credit card or anything, you need to have a proper bank account, or you should have a financial inclusion, which is missing in our country, but fast it is growing. So credit is something which is very essential of an individual, which is a credit rating. So how to take care of that? What should you do so that you have the positive credit rating or the positive credit appraisal? What is the thought process of a bank by which it gives you a loan? These are certain aspects which we will be discussing today, and we will also discuss in detail how a home loan appraisal process is happening, a consumer loan process, a personal loan process, and there are a lot of new fintech companies which are coming, which are giving you loans in just minutes on your phone, or which are giving you credit in just minutes on your phone. We will also try and understand what is the thought process or the rationale which they get into while giving you a credit line or a loan. So the first and the most important thing, a financial system. This is very basic, but this is the base of any country. So any country who has a very strong financial system would always do well. What we understand by financial system in very simple terms. I will not get into the financial intermediaries and institutions and stuff like that, because I'm sure all of that students have been studying that. So basically, a healthy financial system is something which can give a platform, or wherein a system wherein the excess of household funds are being channelized in a manner to meet the demand of funds of the corporate. Okay, and then they give the returns, and this cycle should continue. So any country or any part of the world where this system is transparent, where this system is accessible to as many as possible, there the financial health is very healthy. The excess of funds, which we say the credit or the liquidity of funds in that country, is very healthy, and so it helps that country to grow comparatively quickly or faster as compared to the other parts of the world. So I always put this in a scenario. Let's say, for instance, in India, if you want to get a loan, then you have to either go to a bank or you have to go to a NBFC. There are no other major places where you can get a loan, right? Whereas if you go to a developed country, every point of sale, every point of sale of a product or a thing has the access to credit, which is happening in India now. We say because of Bajaj Finance and other things, you go to a lot of stores are there where you go to a store and you also get the product and you also get the credit. So that is basically a kind of a healthy financial system which should be there. So when we talk of financial system, you all know it includes of various intermediaries, markets, institutions, and the most important being banks. Let's assume from the household excess funds. So household excess funds means people like you, me, who are individuals, who are working, who are having a job, and who have a lot of excess disposable income. So what we do with that disposable income?
what we do with that disposable income is all what we have discussed in the last 4 series of sessions. With my excess disposable income, I will invest them into either mutual funds, I will invest them into a fixed deposits, I will invest them into a post office savings, or I will invest them into a couple of other things. So my excess of funds, okay, I am going to invest into certain areas. Why am I going to invest is because I have excess funds and I want that funds to work for me, and I want certain amount of return on them. If they're idle, then I'm not going to earn anything. So I want to make my money, excess money, earn me something. And when I do that, I put that into all these various instruments of investments. Now when we talk of all these instruments of investments, we all know what does this instruments of investments do. The cycle of money should flow. So when you put money into a mutual fund, they would then put the money into certain corporate deposit, certain debenture, certain shares or equity markets, or lend the money in the money market. If you put it into a bank, then bank would lend it as a loan to another set of people. If you put that money into the equity share of a current some company, that company, let's say Bajaj Finance, you've invested, then Bajaj Finance would raise funds or raise capital, and by raising the capital further, it will again give it back to the people who need funds. They will make money, and whatever money they make, in a longer run, you make money. So this system has to be very much healthy. And we all know that in India, the percentage of people who are savings and the percentage of people who are investing. So a lot of people in India are largely investing into or trying to invest into real assets. Now when we say real assets, it's like gold or silver or land. Okay, we don't believe in investments in stock or mutual funds or fixed deposits to a large per se. People do invest, but the percentage of people who invest are less. So more and more people who come into the formal economy. So there's again a problem into this, because in India we don't have a large formal workforce in our country. So most of the people who work are not formalized into the sector. We are seeing that with what is happening in this current scenario for the migrant workers, because they are very unorganized sector. They are very not organized. Nobody can know. So there is one unit which has 100, another unit who has 50, somebody has 10, somebody has 20. So largely unorganized, and because of that, whatever savings they have, let's assume they also have savings, but whatever savings they have, they either put it into real cash or they buy gold. They don't go to a bank and put a fixed deposit, or they don't go to a bank and say give me some investment plans, because they don't have that knowledge and they don't have that access of understanding all those things. And maybe in the near future, because of the digital or financial inclusion programs of the government of India, we may see a lot of such things happening. So I'll just give you one data that there are crores of rupees from the financial inclusion program, the Jan Dhan program. There are a lot of accounts in which from an amount of 50 rupees to 50,000 rupees are there in their bank accounts, and they are not being withdrawn for a long period of time. So they are keeping an average balance, which is the average balance of this Jan Dhan accounts is crores of rupees. Now this crores of rupees, they are indirectly helping into the bank's funding program. So banks, whenever they have excess of funds or whatever funds they have, they can lend it to the people. So that is a very positive thing, and we will see such more things happening with the things going ahead. So basically these are the intermediaries who help both the ends meet their requirements. Corporates are always in need of funds. When do corporate need funds? They need funds for expansion, they need funds for growth, and I always have the funds. Not always. The people who have funds would always try to get an advantage of these things. So we all know most companies come up in the market as an IPO. They raise funds, and after they raise funds, they would use it. So this is a part of the financial system. We will be focusing more on the banks and NBFCs today, because we are going to discuss on the loan side. So how do you get funds? So again, coming back to this side, we all know the sources of funds which you study into the various sources of finance.
two of the sources of finance are, if you look at the liability side of your balance sheet, we have loans, which is said secured and unsecured loans. So that is the part from a institution point of time we are going to talk in. Who are giving them these loans? It is the banks and the NBFCs, right? We all know about loans, and we all know how do we get it, but we will still try to break it out and understand on how we can take it ahead. So how can you get a loan, or who can get a loan? So anybody in India, individual can get a loan, an organization or a company can get a loan, a trust can also get a loan, and SHG, self-help group, which is priority sector lending. So a group of people, so this is a special scheme of the government of India. It's a very old scheme. I think it started in around 2000, so it's like 15 to 20 years now. So what the self-help group does is, so in rural areas, in it is also famous as Sakhi Mandal. So it's a very interesting model of giving finance and access to finance in rural India. So see, we all know that in rural parts of India, they don't have the financial accessibility. So to include them, what the government had came out with a plan was that 7, 8, 10 women of the village, okay, they can come together and form a small group. They can have a small whatever common activity they are doing. Let's say for instance in Gujarat we have in Kutch side there are a lot of handloom workers or weavers. So these 8-10 weavers of a certain village will come together. They will create a Sakari Mandali or a self-help group. These people will do the economic activity under this roof. Everybody will contribute a small part of their savings, and they will open a bank account, and they will do a economic activity. Once they inform the bank and they give the proof of the economic activity to the bank would then give them a certain amount of a loan to do the business of self-help group. So do the business of whatever activity they are into. So if they are into let's say manufacturing of handloom, or they are into selling of certain rural fertilizers, or they are into certain vegetables, fruits, anything which they want to do as a self-help group, they would do. And the other advantage of it is, if any member of the self-help group needs the funds, then from the surplus of the funds they can give a loan within the members if anybody needs, okay, and then that person would return the funds whenever they get the funds. So this is kind of itself a very systematic method of lending funds in rural areas to encourage the various funding and financial inclusiveness. And it is very interesting that they decided years ago to only allow this, and it is still allowed to only women self-help groups. There are no male self-help groups allowed. So we can understand that if there are men who are given excess of funds in village, they would try to misuse the funds. So everybody trusts that in rural areas this is going to be used in the best manner. In Gujarat we have fantastic example of the Amul model, wherein a lot of self-help groups are working together. They are collecting milk together, they are depositing the milk together, their earnings are coming to the self-help group. Every member of the self-help group is making money, and the self-help group is associated with Amul. So in Amul, it's a cooperative model, we say. So there are individuals who are associated, and there are self-help groups which are associated. So this is one of the model. There are a couple of other ways in which given, but largely the loans are given to individual and organizations. So if we talk of a institution which is giving loans, then the loans they would be giving would be largely to either individuals or organizations. Because see, as a bank or as an NBFC, my business is to take deposit and give loans. So let's say for instance आपका एक ज्वेलरी का दुकान है, और you have a small jewelry store. तो आपके शॉप में एज अ ओनर आप किसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे? वो कस्टमर को जो आपके यहाँ से ज़्यादा ज्वेलरी बाय करता है, करेक्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. देन सिमिलरली similarly what does a bank do is, bank always give importance to the people from whom they make more money. So from where does bank make more money? Bank makes more money from the people who take more loans, who take higher loans. So people who take higher loans are making
a bank make more money, okay, and more profit. So obviously bank gives more importance to them. So the people who take higher loans or larger loans are given more importance, which are normally the corporates, right? So the corporate who gives a lot of loan, they are the customers, and bank would take care of them. So basically the loans are distributed to individuals or organizations. Even trust can get a loan based on their property and other things. We will look into it. Now when we talk of the credit in India, how has credit means simply लोन लेना या पैसा लेना, किसी से उधार लेना. क्रेडिट कैन बी टर्म्ड एज उधार. तो मॉनिटरी उधार लेने का क्या है सिचुएशन इन इंडिया, what has it been in the last couple of years and what is it the present scenario. So if you look in the past, हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि जागीर है ना, लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो पैसा आपको देते थे, बट देन दे वर टेकिंग द लैंड एंड दे वर टेकिंग फेक सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस एंड दे वर एक्वायरिंग द लैंड. Also small money lenders, they used to give funds to people, but the rate of interest even today, अगर आप देखें तो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी वी कैन से देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल जिनके पास बैंक वगैरह जाने का एक्सेस नहीं होता है, तो वो लोकल लेवल पे लोकल लोगों से पैसा लेते हैं, और वो लोकल लोगों पे आपको पैसा मिलता है अराउंड 2% to 3% पर मंथ के इंटरेस्ट से. तो आप इमेजिन करो, अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, नॉट एन्यूअली, है तो एक साल में यू आर जस्ट पेइंग ऑफ, ओके, यू आर डबलिंग द अमाउंट विच यू आर टेकिंग. सो अप्रॉक्सीमेटली 50% आपने अगर 10,000 रुपये लिया है तो आपको 15,000 रुपये उनको दे देना है. दिस इज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. Now when we talk of the unorganized sector, there are also a couple of other places in which these loans are given, even in present, apart from past. So let's say there is microfinance, which is a term which all of you should be aware of, which is in the present also I have stated. So microfinance is organized now, but a lot of microfinance is still unorganized. So I'm talking of the unorganized and unregulated. So we all have these small vegetable vendors and fruit vendors who come to us to sell, okay, जो लारी लेके आते हैं. Now they all need funds. So you know the way the funds are given to them, you go to any APMC. अगर आप अहमदाबाद में there is this APMC at जमालपुर, तो APMC के पास अगर आप देखोगे तो कम से कम 15 से 20 दुकानें हैं जहाँ पे लिखा है पैसा धिरवाना और मनी लेंडर्स. सो व्हाट दिस मनी लेंडर्स डू इज, इसको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये चाहिए अपनी सब्जी को खरीदने के लिए. सो एवरी डे टू बाय द वेजिटेबल ऑन इट्स लॉरी दे नीड अ सर्टन अमाउंट ऑफ फंड्स. एवरीबडी डू नॉट हैव फंड्स, टू बी ऑनेस्ट. सो दे गो टू दिस मनी लेंडर्स. दिस मनी लेंडर्स चार्ज 10%. हाउ मच? 10% ऑन डेली बेसिस. सुबह पैसा लेना है, शाम को लौटाना है, तो वो ऑलरेडी 10% काट के आपको देता है. तो वो आप अगर 5,000 चाहिए तो आपको 4,500 देता है, शाम को आपको 5,000 उसको वापस दे देना है. सो दिस इज़ द वे लाइक थिंग्स आर हैपनिंग, एंड दिस वॉज द वे थिंग्स आर मूविंग ऑन. इवन वी हैव अ लॉट ऑफ अनरेगुलेटेड थिंग्स इन द पास्ट, लाइक ज्वेलरी के ऊपर लोन दिया जाता है, आपके लैंड के ऊपर लोन दिया जाता था. सो the problem in that was it was unorganized और unregulated ज़्यादा important है. unregulated का मतलब ये था कि उस समय में in the past or wherever, even in today, wherever there are unregulated things, even you take a loan और आप लोन का पैसा वापस भी दे देते थे, फिर भी ये लोग आपको आपका सिक्योरिटी वापस नहीं देते थे. तो लोन का पैसा वापस देने के बाद भी आपका लैंड तो आपको वापस मिलता ही नहीं था. तो ये अनरेगुलेटेड और आपके पास कोई रिकोर्स नहीं था. सो बिकॉज इट इज अनरेगुलेटेड, यू डू नॉट हैव अ रिकोर्स. सो वेयर शुड यू गो एंड फाइल अ कंप्लेंट, और यू डू नॉट हैव एनी एक्शंस टू टेक अगेंस्ट दैट पर्सन. and they were all, these are all largely disadvantages of a financial system. But now because of banks and everything, we are seeing a change. So a lot of issue comes into the agriculture loans, कि नीचे के लेवल पे एग्रीकल्चर फार्मर्स के लेवल पे ये बहुत होता है. तो फार्मर का अगर हम क्रेडिट साइकिल का बात करें तो आप समझ लो कि फार्मर सीड सो करके उसको जब अपना फ्रूट मिलता है और वेजिटेबल या ग्रेन्स जो भी बनता है, और उसको गो टू मार्केट जाके पैसा आने में कम से कम 6 से 9 महीने लगता है.
तो फार्मर का तो पूरा बिजनेस क्रेडिट के ऊपर है. आई थिंक एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस आई एक्सप्लेन यू दैट. सो फार्मर्स take the seeds on credit, take the fertilizers on credit, take the equipments on credit, and they pay whenever they get the money when they sell these products. तो इनको इतना हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है. Just average interest is around 48 to 54% which the farmers have to pay. This is as per a study report to these various money lenders. In fact, in villages what happen is, जो बंदा आपको सीड्स देता है, जो आपको फर्टिलाइज़र देता है, वही आपको क्रेडिट देता है. तो आप गए, आपने बोला लाओ 10,000 रुपये का सामान, उसने 10,000 रुपये का सामान भी दिया और सामान में क्रेडिट पे दिया है, और वो पैसा आपको तब देना है. बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई, एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हाई इलिटरेसी पीपल डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट. ओके, तो आपने अगर 20,000 रुपये लिया है और 20,000 पे आपने ऑलरेडी 25,000 का इंटरेस्ट दे दिया है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे उसको 20,000 रुपीज़ पेंडिंग है. बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट, and it is not regulated, so you don't even know how much you are paying or how much you have already paid. So the person or the saukar who would always say कि नहीं तुम्हारा पैसा बाकी है, so even after paying a certain amount it still remains pending. And these are the issues which India was facing in the past. Thankfully now we are changing. Now we have, if we talk in the present sector, we have a large organized system. We have a large lakhs of rural banks. Okay, when we say rural banks or rural RRBs, rural branches of various banks in various small villages, talukas, and they are ensuring that they are giving the farm credit to people. Recently with their farmers are also given Kisan credit cards. So what these vendors were doing, the government is doing or the banks are doing, but the rate of interest is very less. So nowadays, if you talk into the current scenario, it's a very organized bunch of sector which we are into, and thankfully it's because to the RBI, because the Reserve Bank of India regulates the entire credit system in our country. Okay, or the entire credit. So any loans given or any institution who wants to get into this business of credit or everything has to be approved and get its recognition from the RBI based on the various norms laid down by the RBI. So RBI is kind of a watchdog and the authority in entire lending business in our country, and which is very good, entire credit business in our country. So it lays down the rules on how somebody can operate, what is the kind of interest they can charge, what is the regulation needed, what banks have to do. So let me give you an example. We always have, recently there is an insurance on your fixed deposits in banks of 2 lakh rupees, which is increased to 2 lakh rupees. What does this mean? Okay, this means that in case a bank defaults, like we recently saw the Punjab Maharashtra bank happened, or what is happening with Yes Bank, then up to rupees 2 lakh, if your deposits in bank, the government will give you, or there is a insurance. So that is regulation, and that is what the RBI does. Similarly, on the other side of the loans, let's say for instance you are given a loan and you are not paying the loan back, then what action a bank has to take on, that also is being very much regulated by the RBI. Similarly, if I want to get a loan and bank is not giving a credit or they are charging unnecessary charges, so RBI has also suggested that banks cannot charge unnecessary charges. We are looking in the present scenario that the people who have taken loans are given a moratorium of 3 months by the RBI. So RBI directed all the financial institutions to give a moratorium of 3 months, that you have to repay the loans. They can repay the loans with a break of 3 months. So that is the regulation which RBI follows. In India, large part of credit, organized credit, is given by banks and NBFCs, and NHB is National Housing Banks, which are specifically in the business of housing finance. Like you have the Guru Finance, or you have the ICICI Home Finance Limited. So they are specifically into that business. We have microfinance and small banks. So microfinance is something like they give a loan of 5,000 rupees, 10,000 rupees into sub-rural areas, like the way I was talking of giving a loan to
vegetable vendors or giving a loan to small vendors or farmers. That's microfinance, going deep rooted into it. And we also have a lot of small banks which have been approved by RBI. So the small banks means, you know, they don't need a lot of high regulatory requirement. So when we talk of a bank, then the bank, whenever you have to start a bank in India, the requirement of tier 1 capital or the money you need to put as a deposit to RBI as a guarantee to the RBI to start a bank is very high. After even you start a bank, then the bank has to follow a lot of CRR ratios or the CRR requirements, statutory requirements. There are a lot of requirements which the banks have to follow when it comes to running a bank as per the regulations of RBI. After the bank, it comes the NBFCs. So the NBFCs have certain requirements but lesser requirements than banks. So lesser statutory requirements than banks, lesser statutory capital requirement, tier 1 capital requirements, in requirements of the way they open branches, requirement in the way they are getting funds, the requirements in the way they are lending, how strictness they are believing, requirements on disclosure of the data to the RBI. So that are from banks, compared to banks, NBFCs are lesser, they are mild, and they are more mild when it comes to small banks. Small banks is a new concept which has come, so they are milder than even NBFCs. So small banks can have a lesser capital, they can open their branches in tier 2, tier 3 cities, they can just open branches in a very small place, they can accept deposits. So NBFCs do not have that advantage of directly accepting deposits from general public. Very small banks have an opportunity or can accept deposits from the general public. So small banks are basically, the objective of RBI is that most of the NBFCs start converting themselves into small banks, because small banks, RBI is giving certain advantages to them and the regulatory requirements are lesser. So small banks are going up. A lot of NBFCs like AU Finance, Dhanlaxmi Bank, these are all small banks which were NBFCs and got converted into small banks, because small banks have a certain advantage over NBFCs and they can accept deposits from the public. So small banks are there, and they seem to be coming up very nicely. They cannot give all the products which a bank give, you know. So they have limitations in terms of the products they offer, limitations in terms of couple of things, services which they are offering as compared to banks. So they do coordinate with certain banks and they keep doing it. And then so the NBFCs, banks and microfinance, small banks, these are the people who are largely giving loans in our country, or they are distributing loans in our country. Now let's briefly understand on what are the various products they are giving. The products which I have stated, there are few products apart from this also, like the agriculture loans or the education loans, which I have not stated because agriculture is itself a different story. There, like, they are more subsidized. A lot of agriculture loans are subsidized. So if you get a loan of 100 rupees, you get a subsidy on the interest, or you get interest subvention, or you get or subsidy on the capital. So I have not taken that kind of loans because I have just taken the loans in which the banks do a proper credit assessment and then only they give a loan. So if we talk there, the loans can be largely categorized into two things, secured and unsecured, which we all are aware of the terms, the two terms, secured and unsecured. When we talk of the term secured, as the name suggests, it means that there is security. Unsecured means there is no security. Now banks have been creating products for their customers. So people who take loans are the customers for the bank. So bank time and again have been identifying and creating products for their customers where the banks feel that they can make more money. Okay, so I'll just give you a good example. All the concepts of the entire loan runs on the concept of IRR. IRR of a particular loan is internal rate of return. So I'll give you an example. I've been into this industry. I've worked into the consumer finance, into credit for almost a couple of years. So a loan, consumer loan, which we were giving at 0%, our IRR for that loan was around 12% to 13%. Okay, giving a loan at 0%, we were still making a good amount of money.
there were a lot of ways, because if you look on the annuity money which comes back to you on a regular basis, and just imagine if I invest that money on a regular basis to a certain security, I can still end up making that money. So it's like the business of banking is in that manner. It runs largely on IRR, and based on that things happen. So there have been products which have been invented by banks, and based on the needs of the customers and needs of finance of the customers, bank have always been moving on. So just imagine a business. Okay, what does a business need? A business may need money for starting a new business, buying land, buying machinery, buying the raw material, buying packing material. They will need money for installation of certain things in their factory. They may need for innovation. They may need money for working capital. They may need money for exhibition, sales and marketing. They may need money and support when they are doing exports. So these are the various ways where a corporate or an organization may need funds, and every place where they need funds, bank is a product. Let's say an individual may need funds for travel, for marriage, for further studies, for building a home, buying a new home, buying a car, buying a scooter, buying a mobile, going micro too. We also know nowadays, Levi's jeans have tied up with ICICI Bank, and you can get Levi's jeans on EMI. So they are also giving credit in buying a pair of your denim. So these are all the needs, and based on the needs, these products are made. Now banks are also smart. Whenever the exposure, okay, the exposure means the amount of loan which the bank is giving is on the higher side, then they would always secure themselves. They would always have a risk averse. When we say secure means they should ensure that they cover the risk is less, because banking business, the risk is if they give a loan and people don't repay the loan, it's a risk. So bank will also, when as a business, when they are giving loans, they would ensure the risk is less. So the higher amount of loans which the bank gives, they always try to attach a security to it, which means the bank may give a loan to a company, and they will say that, boss, see, I am giving you a loan, but let me value the machinery which you have. So the value of machinery is 5 lakh rupees. I will only give a loan up to 5 lakh rupees, and I want the machinery to be attached to this लोन. सो मशीनरी एज अ सिक्योरिटी. अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो आप मुझे राइट्स देते हो कि मैं ये मशीनरी बेच के वो पैसा रिकवर कर सकता हूँ. सो इन मोस्ट ऑफ द सिक्योर्ड लोन्स, लेट्स से समबडी गिव्स अ लैंड लोन, तो लैंड बाय करने के लिए जब भी कोई लोन देती है बैंक, तो वो लैंड का, द लैंड इज इन द नेम ऑफ द बैंक unless the entire loan is been repaid. And once the loan is been repaid, the land is been again renamed in the name of the company or the person who buys the land. Similarly in terms of a machinery, so if you go to a lot of factories, आप देखोगे मशीनरी के ऊपर लिखा होता है hypothecated by Bank of India, hypothecated by HDFC Bank, hypothecated by देना बैंक. तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मशीन का लोन इन्होंने ये XYZ बैंक से लिया हुआ है. हाउसिंग लोन, अगर आप घर खरीदते हो तो आपका घर आपके नाम पे नहीं रहता है, वो बैंक के नाम पे रहता है, और जब आप अपना पूरा इंस्टॉलमेंट ख़त्म कर देते हो उसके बाद बैंक आपको आपके नाम पे दे देता है. सो बेसिकली गोल्ड लोन, इन्वेंटरी लोन, मॉर्गेज, ऑटो, कंज्यूमर लोन. तो आपने गाड़ी ले लिया, लेकिन गाड़ी लेने के बाद अगर आप पैसा नहीं भरते हो तो बैंक के पास राइट्स है कि वो आपका गाड़ी ले जाके गाड़ी को सीज करके, गाड़ी को बेच के जो भी पैसा आता है वो निकाल ले. इट डजेंट हैपन ओवरनाइट कि अगर आपने पे नहीं किया तो कल ही ले जाएंगे. देर आर वेरी प्रॉपर नॉर्म्स फॉर NPAs विच आर कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. सो बैंक के लिए जो भी बिजनेस है और जो भी अर्निंग्स है, बैंक की असेट्स है लोन्स. ओके, हर एक बैंक का और NBFC का और स्मॉल बैंक का असेट्स है जो लोन उसने आपको दिया है. हमारी ये लोन लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए लोन एक असेट है. तो जो भी असेट्स है उसका क्वालिटी का डेफिनेशन RBI ने दिया है, तो उसको स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में उन्होंने कैटेगराइज किया है कि जो असेट्स 30 डेज़ ने पैसा नहीं दिया, 60 डेज़ तक पैसा नहीं दिया, 90 डेज़ तक पैसा नहीं दिया, 120 डेज़, 180 डेज़ के बाद NPA हो जाता है. तो ये नेचुरल प्रोसेस है जो RBI ने नॉमिनेट किया है. तो ये जो भी डाउटफुल असेट्स होता है, इसके सामने बैंक्स को हर साल प्रोविज़न करना पड़ता है कि अगर बैंक का
लेट्स से फॉर इंस्टेंस बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया हुआ है, और 100 करोड़ की लोन में इस साल उनका जो सब स्टैंडर्ड असेट था, ये डाउटफुल असेट है, वो अगर 5% या 5 करोड़ रुपए है 100 करोड़ में, तो उसको एक एक्स परसेंटेज डिफाइंड बाय आरबीआई, दे शुड डू अ प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब आज 30 दिन में अगर 50 लोगों ने पैसा नहीं दिया है, तो 360 डेज में ये 50 लोगों में से प्रोबेबिलिटी है कि 10 लोग पैसा नहीं देंगे। तो जो पैसा नहीं देंगे उनका लॉस होने का अनुमान आज ही हमको लगाना है बैंक को, और उस पैसों का ऑलरेडी प्रोविजन करके रखना है, जिससे फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होता है तो बैंक हमेशा सेफ है। जैसे आज जो हम लोग DHFL में केस देख रहे हैं, so DHFL is a live example of non-provisioning. Okay, I'll just briefly explain you what has happened in DHFL. So the DHFL promoters, they gave loans. Okay, they gave loans to their relatives, their known people, और उन्होंने उन लोगों को लोन दिया जिनको वो जानते थे और जिन्होंने उनको रिलेशन है तो कुछ भी चेक किए बिना पैसा दे दिया। लेकिन पैसा देने के बाद जब फर्स्ट टाइम से उन्होंने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया, तो जो पहले 30 दिन थे जब उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी बुक्स पे ये दिखाया ही नहीं कि हमको पैसा नहीं आ रहा है। एक्चुअली दे शुड हैव बीन पुटिंग एंड नोटिंग दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट वी आर नॉट रिसीविंग द फंड्स। दे डिड नॉट डू दैट एंड दे डिड नॉट इवन शो दैट टू द आरबीआई। तो आरबीआई का भी गलती हो गया, ऑडिटर्स ने भी गलती हो गया कि नहीं दिखाया। जो पैसा नहीं दे रहा है उसको तो चिंता ही नहीं, उसको तो मज़ा पड़ गया कि चलो ये मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो DHFL ने ये डर से कि अगर मैं आरबीआई में ये रिकॉर्ड करूँगा तो आरबीआई मेरे सामने एक्शन लेगा, तो DHFL ने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया। और क्या हुआ कि डिस्क्लोज़ नहीं किया तो प्रोविज़न नहीं बनाया, और प्रोविज़न नहीं बनाया तो एक दिन, 1 साल 6 महीने 1.5 साल के बाद जब ये पूरा का पूरा डंप जो उन्होंने ऐसे ही पैसा दिया था, जब वो रीपे नहीं कर पाए, तो एक साथ इतना बड़ा लॉस उसकी बुक्स पे एक साथ आया। अगर उसने प्रोविजंस किया होता, आरबीआई को बताया होता, तो आरबीआई ने एक्शन लेके बहुत पहले से DHFL को कंट्रोल में किया होता, पर ये नहीं हुआ। और जिसकी वजह से जब ये चीज़ पता चली, तो आप समझो कि आपके 100 रुपये के लोन में से 50 रुपये का लोन डिफ़ॉल्ट हो गया। तो कल तक आप अपनी बुक्स पे ये दिखा रहे थे कि 100 लोग आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दे रहे हैं, और सडनली आप कल से ऐसा बता रहे हो कि 50 लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे। तो सडनली लिक्विडिटी क्रंच, कैश क्रंच आ गया, और जिसकी वजह से DHFL एज एन इंस्टीट्यूशन ब्रोक डाउन बिग टाइम। एंड देन द आरबीआई केम इन, दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ इट एंड दे स्टार्टेड इंश्योरिंग कि DHFL में बहुत सारों ने डिपॉजिटर्स ने पैसा डाला था। लाइक कंपनी डिपॉजिट्स होती है, डिबेंचर्स होते हैं, तो कंपनी डिपॉजिट और डिबेंचर्स में बहुत इन्वेस्टर्स के पैसे थे, और ये इन्वेस्टर्स को वापस देने के लिए पैसा ही नहीं है, क्योंकि DHFL ने तो वो सब ऐसे ऐसे लोगों को लोन बांट के रखा था जो लिक्विडेट हो गए हैं, लॉसेज में है और रीपे ही नहीं कर पा रहे हैं। सो आरबीआई हैव कम इनटू, आरबीआई हैव टेकन ओवर द बोर्ड, दे हैव टेकन ओवर द असेट्स ऑफ द promoters of the DHFL family, and now they are trying to liquidate and then they will come. So always secured loans is risk mitigating thing for them, and there are a lot of unsecured products which are more individualistic. ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका टिकट साइज छोटा छोटा होता है। तो एक बैंक के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन छोटी अमाउंट है, क्योंकि बैंक को 5-10 लाख रुपए में उनकी पूरी बैलेंस शीट में, उनकी पूरी बुक साइज में 5 लाख 10 लाख रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। सो आई टेल यू, आई used to work with the NBFC and we used to give 25 lakh rupees business loans, unsecured business loans, to a lot of businessmen at a rate of around 16%, 17% flat. People used to take loans from us, and my IRR in that case was around 28-30%. So my company was making money. People were taking the loan, so we were fine with it. But on the size of a entire book, 25 lakh is a small amount, क्योंकि साल का अगर मैं 100 करोड़ रुपए लोन दे रहा हूँ, तो मेरे लिए 25 लाख की टिकट साइज वाले लोग इज ओके। सो देर आर पर्सनल लोन्स विच आर गिवन टू इंडिविजुअल्स, देयर क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड इज इटसेल्फ अ क्रेडिट लोन। क्रेडिट कार्ड में आपको एक लोन मिलता है जो आपको 45 डेज में रीपे करना है। अगर नहीं रीपे करते हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। यू हैव शॉपिंग लोन्स, आजकल आपको उसके लिए मिलता है, जैसे बजाज फाइनेंस दे रहा है, या फिर आपको कुछ बाई करना है उसके लिए लोन लेना है। आजकल ट्रैवल के लिए भी लोन दिया जा रहा है। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज
आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ किश्त एंड मेक माई ट्रिप। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज भी आपको ईएमआई पे ले जाती है, जैसे कॉक्स एंड किंग ले जाता है कि आप आओ यूएस जाके आओ, आपको लोन आपको ईएमआई पे हम कर देंगे। सो देयर आर दी काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स कि वो आप पैसा नहीं दोगे तो जो इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन दिया है वो इंस्टीट्यूशन के पास कोई रिकोर्स नहीं, और दे डू नॉट हैव एनी रिस्क असेसमेंट, दे डू नॉट हैव एनी थिंग टू टेक बैक। अगर आप पैसा नहीं देते हो तो वो आप ही को बोल सकते हैं कि सर पैसा दे दो। अगर आप नहीं देते हो तो दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। सो दीज आर बेसिकली द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल एंड लार्जली ऑर्गेनाइज्ड वे में यही प्रोडक्ट्स है जो ज़्यादा बैंक की बुक को कवर करते हैं, ठीक है। हाँ, what happens when you apply for a loan? So largely ये एक बेसिक मैंने चार्ट बनाया है। हर एक जगह पे यही चीज़ होता है, कुछ जगह पे अलग अलग चीज़ें प्रोसेस करने का, कहीं पे डिजिटल तरीका है, कहीं पे फिजिकल तरीका है, बट लार्जली वेन एवर यू पुट सो यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। आई जस्ट ट्राई। सो सेल्स टीम, जो भी बैंक का सेल्स टीम होता है ना, उसका काम होता है कंज्यूमर्स को ढूंढना जिसको लोन्स चाहिए। सी बैंक और एनबीएफसी के लिए सेल्स का मतलब होता है आप बेचो। व्हाट डू यू सेल इज यू सेल लोन्स, बिकॉज दैट्स वेयर यू मेक रेवेन्यू। सो बैंक्स हैव टू गो आउट एंड सेल लोन्स टू पीपल। दे कैन सेल वेरियस काइंड ऑफ लोन्स। सो दे हैव टू गो आउट, फाइंड द मार्केट एंड फाइंड पीपल हु वांट लोन्स, ठीक है। किसी को घर के लिए चाहिए, किसी को ऑटो के लिए चाहिए, किसी को एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, किसी को मशीनरी बाय करने के चाहिए। तो सेल्स का जो टीम है ना, उनका असेंशियल काम होता है कि वो कस्टमर को जाके मिलते, उनको समझाते, अपने लोन के फीचर्स बताते, लोन के बारे में बात करते और उनको कन्विंस करते हैं कि वो अप्लाई करे और मेरी बैंक या मेरी एनबीएफसी उसको लोन देगी। तो कस्टमर्स सबसे पहले पॉइंट ऑफ टच में आते हैं सेल्स टीम से, और सेल्स टीम इन कस्टमर्स को अप्लाई करवाती है हमारी बैंक या एनबीएफसी में लोन के लिए। एंड so there is a good application form which has to be signed by the customer itself। तो अगर हम आरबीआई के नॉर्म्स देखें इसमें, तो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है इसको हम CAF भी बोलते हैं। तो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फुल्ली फिल्ड, उसके ऊपर उसका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए। यू नो, अगर आप कस्टमर कोई लोन का एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार इतना तो मैंने MBA के एडमिशन के लिए भी डेटा नहीं दिया था जितना ये लोग मांग रहे है ना। सो दे आस्क फॉर एवरी डेटा फ्रॉम योर रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, आपका इंश्योरेंस है या नहीं है, आपका लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका इनकम कितना है, आपका एक्सपेंस कितना है, घर आपका है या आपके पापा का है, कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो, एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो सेल्स की टीम का काम होता है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा जांचे और गलती के बिना वो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराए बैंक में, इसको हम लॉगिन बोलते हैं। तो ना एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन किया जाता है। लॉगिन का मतलब सिस्टम में वो एप्लीकेशन फॉर्म का एंट्री किया जाता है। जैसे ही एप्लीकेशंस आती है, सो यू नो एवरी बैंक और एवरी एनबीएफसी इज अ क्रेडिट टीम। क्रेडिट टीम का मतलब अगर द पीपल हु टेक द क्रेडिट डिसीजन। सो इफ आई वाज अ क्रेडिट अप्रेजल मैनेजर, तो आई हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर टू गिव अ लोन और नॉट टू गिव अ लोन टू द कस्टमर। सेल्स वाला डिसाइड नहीं करेगा। तो सेल्स वाले एप्लीकेशन लाते हैं, तो मल्टीपल ब्रांचेज में एप्लीकेशन आती है। हर एक ब्रांचेज में से ये एप्लीकेशन को ऑनलाइन लॉगिन किया जाता है। ऑनलाइन लॉगिन का मतलब ये एप्लीकेशन को डिजिटल फॉर्म में डाला जाता है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड किया जाता है, और सेंट्रलाइज क्रेडिट टीम होता है। जैसे अहमदाबाद में 10 ब्रांचेज है, तो हर एक ब्रांच में एक क्रेडिट का बंदा नहीं बैठता है। अहमदाबाद में एक क्रेडिट का टीम होगा जो बैठ के हर एक ब्रांचेज से जो एप्लीकेशन आ रहा है उसको मॉनिटर करेगा। तो एक बार एप्लीकेशन आ गया, उसके बाद प्राइमरी एक बंदा होता है, इसमें एंट्री लेवल फ्रंट एंड क्रेडिट का जो लड़का होता है, वो लड़का हर एक एप्लीकेशन फॉर्म को देखता है। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है वो चेक करता है। यू नो, काफ़ी बार पैन कार्ड लोग फेक देते हैं। यू नो, देयर लॉट ऑफ फेक केसेस विच हैपन, एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ओनली द फेक केसेस आर बीन आइडेंटिफाइड। यू नो, आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल ट्रिक। पैन कार्ड होता है ना, तो पैन कार्ड का जो 5th डिजिट होता है वो आपका सरनेम होता है। You know, so if my name is Japan Shah, okay, so my surname starts with the alphabet S. So my PAN card number is BDEPS. So my 5th digit of my 5th alphabet of my PAN card has to be my surname. If it is not,
देन इट रेजेस एन अलार्म एंड वी डोंट इवन एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। ऐसा ही होता है जब आप अभी तो जीएसटी नंबर है, पहले वैट के नंबर से, तो वैट का नंबर भी फॉर्मुलेट किया गया है कि वैट के नंबर के अंदर कंपनी का पैन नंबर होता है, उसी तरह से कंपनी के कैटेगरी होती है, अगर वो प्रोपराइटर है, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है, अगर वो लिमिटेड है। सो यू नो देयर इज़ अ मेथड ऑफ कोडिंग के वो 14 डिजिट्स कैसे बने हैं, उसके अंदर उसका एरिया कोड होता है, ऑफिसर कोड होता है। तो प्राइमरी लेवल पे उसी चीज़ को हम चेक करते हैं। जो भी कंपनी को आईटीआर सबमिट, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो सबमिट किए होते हैं, वो सब एप्लीकेशंस को सबसे पहले यहाँ पे स्कैन किया जाता है, एंड दैट इज़ डन बाय एंट्री लेवल पर्सन हु इज़ काइंड ऑफ अ बीकॉम, but he knows what to check and what not to check. If he finds the application is perfect and in order, ठीक है, उसको लगता है कि ये चीज़ प्रॉपर है, ऑर्डर में है, तो वो आगे क्रेडिट उसके सीनियर को वो ओके करके आगे भेजेगा। अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट करके भेजेगा, तो सेल्स वाला वापस सेल्स वाले के पास जाएगा, सेल्स वाला जाके कस्टमर से पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स लाके फिर से एप्लीकेशन देगा, फिर से ये रिजॉल्व होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रेडिट अप्रेजल। यहाँ पे चीज़ आती है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे भी बात करेंगे। क्रेडिट अप्रेजल में क्रेडिट मैनेजर उसकी एप्लीकेशन को पूरा डिटेल में ठाकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड्स को समझता है, उसका करंट मॉनिटरी सिचुएशन को समझता है, पूरा प्रॉपर उसके फिनेंशियल्स का स्टडी करता है, उसका फिनेंशियल कैपेसिटी और ऑब्लिगेशंस चेक करता है, उसको जो भी ऑब्जेक्टिव के लिए लोन चाहिए उसको ट्राई करता है ढूंढने का, और उसके बाद इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके देन दे गिव एन अप्रूवल। नाउ अप्रूवल डजंट मीन डिसबर्समेंट। यू नो काफ़ी बार होता है कि कस्टमर जो होते हैं ना उनको ज़्यादा पैसे ही चाहिए। सो आई हैव सीन अ कस्टमर विल से आई वांट 15 लाख रुपीज़, बट आई फाउंड दैट यू नो दिस कस्टमर वी कैन ओनली गिव 7 लाख रुपीज़ और 8 लाख रुपीज़। सो आई विल अप्रूव 7 lakh rupees. The sales guy will go to the customer and he will talk to him that if he is fine to take in 7 lakh rupees or he is not fine. Okay, and then he will come back to us. So approval doesn't mean disbursement. Disbursements का मतलब आपके हाथ में पैसा आना। कस्टमर के हाथ में पैसा तभी आता है जब जो भी अप्रूवल है उसको वो हाँ बोलता है, अगर वो ओके करता है तो हम डिस्बर्स करते हैं। अगर क्रेडिट अप्रेजल में चीज़ें ठीक नहीं लगती है तो द थिंग इज़ बीन रिजेक्टेड, and once it is rejected they are not supposed to reapply for a certain period of time. largely ये चीज़ें फॉलो होती है। हम इस वाली चीज़ को थोड़ा डिटेल में आगे समझते हैं, बाकी चीज़ों में कुछ इतना बड़ा नहीं है। बट द सेल्स गाइज यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पीपल हु आर इनटू द सेल्स इनटू अ बैंकिंग और इन एनबीएफसी द स्मार्टेस्ट गाइज, उनको सबसे स्मार्ट होना है। समझो क्रेडिट वाला बंदा है ना, उसको तो पीछे बैठ के काम करना है। सेल्स वाले को ये हर एक स्टेज के ऊपर कस्टमर को लूप में रखना है। काफ़ी बार ये पूरी चीज़ होते होते 7 दिन 10 दिन 15 दिन होते हैं। तो सेल्स वाले को पूरी चीज़ का, सेल्स वाले को क्रेडिट का पॉलिसी का भी नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर का भी नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, और उसको हर एक स्टेज पे बात करना है। तो बैंक में जैसे जैसे बड़ी बड़ी लोन्स के प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पे सेल्स वाले बंदों के पैकेजेस और सेल्स वाले बंदों का रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा होता है, because you know they have to deal with senior people in the organizations. So the sales guys are very smart. I have seen the sales guys smarter. You know काफ़ी बार ये एप्लीकेशन को वो लॉगिन ही नहीं करते, वो एप्लीकेशन देख के समझ जाते हैं कि इसमें गलती है, ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो वो हमको दे देते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सेल्स वाले इतने स्मार्ट होते हैं कि कस्टमर का एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरते हैं, सिग्नेचर खुद करते हैं और फिर भेजते हैं। I have a recent case with a very premium bank called Yes Bank. I had applied for a bank account and I had not given them my stamp. तो सेल्स वाले बंदे ने मेरा स्टैम्प खुद बना दिया था और उसने मुझे पूछे बिना मेरा स्टैम्प बना के मेरे हर एक डॉक्यूमेंट पे डाल दिया था। आई एस्केलेटेड इट टिल द CEO and then the sales guy came and apologized. So things happen, you know, काफ़ी बार कोई स्मार्ट होगा तो फंस जाते हैं। बाकी सेल्स वाले have to be very tricky. Sales are the key people into the entire process in a banking system because they go out, talk to the customer and ensure things are there. Now when we talk of this credit appraisal, so जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स अटैच्ड है हर एक तरह की लोन में। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई कंपनी ले रही है तो उसके डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी, उसके डायरेक्टर का क्रेडिट, प्रोपराइटर का बात करें तो इंडिविजुअल का क्रेडिट। तो ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया में जो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मेरा अगर
आप what are these credit agencies basically? सिबिल इज़ द मोस्ट फेमस वन. एक्सपीरियंस, एक्विफैक्स और हाईमार्क्स आजकल नई आई हुई है जो अच्छा काम कर रही है, बट सिबिल के पास सबसे अच्छा डेटाबेस है. व्हाट इज़ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? सो बेसिकली लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सिबिल बिकॉज इज़ द ओल्डेस्ट वन. तो सिबिल इज़ अ एसोसिएशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो सिबिल में हर एक बैंक मेंबर है, या मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लेंडिंग दे आर पार्टनर्स एंड दे आर एसोसिएशन. इट्स अ काइंड ऑफ एन एसोसिएशन. तो हर एक बैंक और हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना लेंडिंग का डेटा सिबिल के साथ शेयर करता है. लेंडिंग का डेटा मतलब अगर बैंक ऑफ इंडिया ने जितना भी लोन दिया है आज तक, वो पूरा का पूरा डेटा वो सिबिल से शेयर करेगा. HDFC बैंक भी शेयर करेगा, ICICI बैंक भी शेयर करेगा. तो जितने भी उसके पार्टनर्स है सिबिल के अंदर, जो पार्टनर कंपनीज है, एवरीबडी विल शेयर द डेटा टू सिबिल. एंड द बेनिफिट इज सिबिल विल देन शेयर द डेटा विथ ऑल इट्स पार्टनर्स. तो सब सिबिल को शेयर करेंगे और सिबिल फिर उस डेटा को प्रॉपर प्रोसेस करके प्रॉपर फॉर्मेट में डाके बाकी पार्टनर्स को देगा. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस. अगर मेरा बैंक ऑफ सिटी बैंक का एक लोन चल रहा है, ठीक है, और सिटी बैंक सिबिल का पार्टनर है. कल मुझे लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, जिसके लिए मैंने पंजाब नेशनल बैंक में अप्लाई किया है. तो जब पंजाब नेशनल बैंक भी अगर सिबिल का पार्टनर है, तो पंजाब नेशनल बैंक जब सिबिल में जाके मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है, जैसे पैन कार्ड, सिबिल में लार्जली पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, ये दो की यूनिक पॉइंट्स है. तो अगर सिबिल के डेटाबेस में अगर मेरा पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डालेगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक, तो उसको दिखेगा कि मेरा सिटी बैंक का लोन चल रहा है. तो जितने भी पार्टनर बैंक्स है वो सब का डेटा बेस सिबिल में है और उसी डेटाबेस का एक्सेस उसी पार्टनर्स को दिया जाता है. PNB को ये पता नहीं चलेगा कि मेरा लोन कौन सी सिटी बैंक से या कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चल रहा है, बट उनको पता चलेगा कि मेरा कितने अमाउंट का लोन है, कितने समय से मेरा लोन चल रहा है, वो लोन में मैंने कितने इंस्टॉलमेंट दिए हैं, क्या मैं उसको टाइम पे दे रहा हूँ. अगर टाइम पे दे रहा हूँ तो 0 आएगा. I could have shown you a CIBIL report, but I think showing a CIBIL report is like a personal individual thing. तो इसलिए मेरे पास CIBIL reports है, but I could not मैं उसका नाम वगैरह हटा नहीं पाया. So I cannot show a CIBIL report because it's very individual. किसी की प्राइवेसी और प्राइवेट नहीं दिखाना है, मैं मेरा भी नहीं दिखा सकता, वो अच्छा नहीं लगता है. So but yes, CIBIL report, it doesn't show the name of the bank, but it will show you that it is given, it was the date of start of the loan, the date end of the loan, each installment. So there were 30 installments. So each installment कब दिया था, क्या मैंने टाइम पे दिया होगा तो 0 दिखाएगा, 30 डेज लेट दिया होगा तो 30 दिखाएगा, 60 डेज लेट दिया होगा तो 60 दिखाएगा. अगर मैंने रीपे नहीं किया है और मेरा रिटर्न ऑफ हो गया है, रिटर्न ऑफ मीन्स 180 डेज से ज़्यादा हो गया है, तो रिटर्न ऑफ स्टेटस भी दिखाएगा. अगर कोई लीगल केस हुआ है तो वो भी दिखाएगा. मेरे जितने भी क्रेडिट कार्ड्स है, जितना भी फाइनेंशियल एक्सपोजर है, वो सब डेटा सिबिल के पास, सिबिल के डेटाबेस में लार्जली होगा अगर आप कोई लीडिंग बैंक में हो तो. अब ये डेटाबेस से क्या होता है, तो सिबिल क्या करता है, द ट्रिक एंड द मैजिक कम्स हियर. सिबिल ये पूरे डेटा को, ठीक है, बैंक्स ने डेटा दिया है तो सिबिल देखेगा कि ये पैन कार्ड, ये डेट ऑफ बर्थ में मेरा नाम है, ये सब डेटा को इकट्ठा करेगा और इस डेटा को स्टडी करके वो एक रेटिंग देता है आउट ऑफ 900, कि 900 में से मेरा स्कोर 700 है या 600 है या 800 है. एंड दे हैव कैटेगराइज द रेटिंग दैट इफ द रेटिंग इज 400 और इफ द रेटिंग इज 500 देन इट्स अ पुअर क्रेडिट. If it is 700, 650 and above, it is a good credit. If it is 800 and above, it is excellent credit. So this rating is done by CIBIL and these agencies based on the data of various banks to their association, and based on this rating the agency to give loan. Okay, आपने कहीं पे भी अप्लाई किया है तो ये जो भी क्रेडिट अप्रेजल या क्रेडिट मैनेजर है उसका डिसीजन, सबसे पहला चीज़ होता है कि वो क्रेडिट रेटिंग सिबिल या कहीं जाके आपका क्रेडिट रिपोर्ट लेगा और क्रेडिट रिपोर्ट से वो डिसाइड करेगा आपको लोन देने के लिए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. सो दीज पीपल दे कलेक्ट द डेटा. सो वन इज़ दे शेयर द डेटा विथ ईच अदर. सो द डेटाबेस इज़ एक्सेसिबल टू द मेंबर्स एंड इवन टू द नॉन मेंबर्स. आज आपको आपका खुद का सिबिल रिपोर्ट भी चाहिए तो आप सिबिल की वेबसाइट पे जाके 400-500 रुपीज़ पे करके आप अपना सिबिल रिपोर्ट ले सकते हो. आजकल सिबिल ने कुछ एनुअल प्रोग्राम्स भी चालू किया है कि आप 1200 रुपये देते हो, उसको तो पूरे साल में आप
entire year you can access your credit report at any point of time. You can also apply to a certain banks for loans from your CIBIL account. तो ये सब चलता है. So basically a credit rating agency collects the data from its partner banks, they process the data and they come out with a rating that a certain individual based on his financial history has a certain rating, and that rating would identify or would help in decision making of the financial institution in approving you a loan or not approving you a loan. So CIBIL is the largest one. Experian is new or upcoming and a famous thing because Experian में सब partners नहीं है. You know CIBIL में almost हर एक financial major financial institution partner है. जैसे ऐसा समझो कि CIBIL में अगर 100 financial institution partners है तो Experian में अभी 50 या 60 है, Equifax में 40 है और हाईमार्क में भी 30-40 है. तो सब अपना अपना बना रहे हैं बिकॉज यू नो CIBIL इज़ कॉस्टली. एक CIBIL का रिपोर्ट बैंक को 2008 में अगर मैं बात करूँ, 2005 से शुरू करता हूँ जब से मैं इंडस्ट्री में था. 2005-06 में CIBIL का एक रिपोर्ट हमको अप्रॉक्सीमेटली 200-250 रुपये में पड़ता था, जो आज अप्रॉक्सीमेटली 300 to 350 में पड़ता है. एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट वॉज वेरी रेयर, बहुत कम बैंक्स CIBIL रिपोर्ट देखती थी. इवन कोऑपरेटिव बैंक्स लास्ट 2-3 साल तक CIBIL रिपोर्ट देखती ही नहीं थी. कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अ लॉट ऑफ PSUs हैव स्टार्टेड एक्सेसिंग टू CIBIL इन द लास्ट 5 to 7 ईयर्स. तो लास्ट 7-8 साल के पहले CIBIL का उपयोग लार्जली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में और फॉरेन लेड NBFCs में ही होता था, और इसलिए CIBIL वहाँ पे पार्टनर्स कम थे और महंगा था. आज पार्टनर ज़्यादा है, डेटा ज़्यादा है और फिर भी वो महंगा है. सो CIBIL का अल्टरनेटिव काफ़ी बैंक्स ढूंढ रही है. सो Experian और उसमें HDFC है, ICICI बैंक है, वो सब ने प्रमोट करके ये अलग अलग क्रेडिट एजेंसीज बनाई है जिससे उनको ईजी हो सके. बट ये CIBIL इज़ द लीडर एंड इट विल रिमेन द मार्केट लीडर. So based on this individual credit score, they take a decision. Now let's come to the next point. What impacts a credit rating, or I can also reterm this as what impacts the decision of a bank in giving you a loan or not. तो अगर मुझे आपका लोन अप्रूव करना है तो क्या क्या एस्पेक्ट्स है, जो एस्पेक्ट्स पे मैं आपको लोन अप्रूव करूँगा और फैक्टर्स जो मेरे क्रेडिट को इम्पैक्ट करेंगे. तो सबसे पहला है डिस्पोजेबल इनकम. सो यू ऑल नो इन इकोनॉमिक्स हाउ टू कैलकुलेट डिस्पोजेबल इनकम. एंड सी रिमेंबर द टर्म डिस्पोजेबल इनकम इज़ अ इकोनॉमिक टर्म एंड नॉट अ फाइनेंशियल टर्म. हम लोग काफ़ी बार इसको बोलते हैं ये फाइनेंस में आता है, पर ये एक्चुअली इकोनॉमिक टर्म है डिस्पोजेबल इनकम. तो डिस्पोजेबल इनकम का अच्छा खासा लंबा चौड़ा इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला है कि आपका इतना पैसा है, इसमें से आपका इतना आपका बेसिक एक्सपेंसेस है, फिर ये वो, और जो बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम है. तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, आपका करंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना है. ओके, सो लायबिलिटी का मतलब मेरा इंडिविजुअल हूँ तो मेरा करंट लोन्स कितना चल रहा है, क्रेडिट कार्ड्स में कितना चल रहा है, वो मेरा करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गया. अगर मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई कंपनी है तो उसके अंदर मेरे बैलेंस शीट से पता लग जाएगा. क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब कि मैंने पास्ट में मैंने क्या क्या किया हुआ है. ठीक है, मेरा पास्ट में क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, मैंने कितनी बार लोन लिया है, कितनी बार उसको कितने समय पे रेगुलरली लोन को रीपे किया है या नहीं किया है, क्या मैंने उस लोन्स में डिफ़ॉल्ट किया था या नहीं किया था, कितने अमाउंट का लोन लिया था, कितने समय के लिए लोन लिया था और कब तक मैंने रीपे किया था या नहीं किया था, वो अपडेट करता है. यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, CIBIL का डेटा ये भी ध्यान रखता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 2.5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख में से आप कितना परसेंटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड का लिमिट रेगुलरली यूज़ करते हो, है ना. तो उसके बेसिस पे भी वो आपका क्रेडिट का आइडिया लगाएगा कि मेरा नॉर्मली हर महीने 50,000 रुपये का बिल होता है, तो CIBIL को पता है या क्रेडिट एजेंसी ये ले लेती है कि ही इज़ यूटिलाइजिंग X% ऑफ क्रेडिट ऑन रेगुलर बेसिस. तो उससे पता लगता है कि मेरा ऑलरेडी इतना परसेंटेज और इतना क्रेडिट का एक्सेस तो है ही. फिर आता है अमाउंट ऑफ लोन नीडेड, कि मुझे कितना पैसा चाहिए, है ना, लोन के लिए. तो वो डिसाइड करने के लिए मुझे ये सब फैक्टर्स देखना है. जैसे मेरा डिस्पोजेबल इनकम ही X है और मैं X का मतलब 100 रुपये मेरा डिस्पोजेबल इनकम है और 10,000 रुपये मुझे लोन चाहिए, तो ऑब्वियस है मेरे को लोन नहीं मिलेगा.
तो वो भी मेरे को देखना है। मेरे को मेरा एज भी देखना है। एज इसलिए देखना है कि जैसे अगर 50 साल की उम्र वाला बंदा 50 लाख का लोन ले रहा है तो रिस्क ज़्यादा होगा, बिकॉज वो 50 लाख रीपे करने के लिए 10 साल तो चाहिए ही। तो 10 साल उनके एज का हिसाब से रिस्की होगा, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट। द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सैलरीड हो तो आपको लोन ईजिली मिलता है, क्योंकि सैलरीड को क्या रेगुलर इनकम होता है, और रेगुलर इनकम की वजह से रिस्क कम है। सो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं क्रेडिट की बात करूँ ना, तो क्रेडिट में हम लोग टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में इवन आप सैलरीड भी हो तो सैलरीड आप कहाँ पे काम करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वी हैड अ लिस्ट ऑफ कंपनीज लाइक टियर ए कंपनीज, जो 500, 700, 1000 कंपनी का लिस्ट था कि अगर वो 700, 1000 कंपनी में काम करते हैं कोई, जैसे L&T है या रिलायंस है या कोटक है, ऐसी कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहा है कोई एम्प्लॉय, तो उसका ऑब्वियसली क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा, क्योंकि उसका जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छा है, उसका स्टेबिलिटी अच्छा होगा, और उसकी कंपनी ग्रो कर रही है तो अपॉर्चुनिटी अच्छा होगा। वैसे ही हर एक कंपनी के पास इंटरनल एक 1000 कंपनी का लिस्ट होता है जो डिफ़ॉल्ट कंपनीज होती है। तो काफ़ी बार जो कंपनी ने खुद डिफ़ॉल्ट किया है कहीं से, ठीक है, तो उसके एम्प्लॉय को तो कभी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। ऐसा होता है, देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आप बात कर ले तो किंगफिशर एयरलाइन का जो इशू चल रहा था, तो किंगफिशर एयरलाइन के काफ़ी एम्प्लॉय को भी लोन नहीं मिलता था, या लोन मिलता था तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें तो काफ़ी बार आप गाड़ी खरीदने चाहोगे तो आपको गाड़ी के शोरूम वाला बोलेगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपये डिस्काउंट दूंगा। गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको 1% लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन दे दूंगा, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट जॉब वाला जो बंदा है उसका जॉब सिक्योरिटी का चिंता ही नहीं है और उसको पैसा आने वाला है, तो रिस्क कम है, डिफ़ॉल्ट करने का चांसेस कम है। तो दिस जस्ट अ इनपुट टू शेयर टू यू, क्योंकि हर एक आस्पेक्ट को, क्योंकि बैंक के लिए तो क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब मुझे एक्सपोजर देना है, मुझे डिसीजन लेना है किसी को 25 लाख रुपए का लोन देने का, या मुझे डिसीजन लेना है किसी को 10,000 रुपये का भी लोन देने का, तो मुझे बहुत ही कॉन्शियस सोचना है, मुझे सब कुछ देखना है, हर एक वेरिएबल को स्टडी करना है, हर एक एस्पेक्ट को पढ़ना है, और फिर ही डिसाइड करना है कैसे लोन देना है। अगर कोई बिज़नेस को लोन दे रहा हूँ तो मुझे देखना है कि वो बिज़नेस किस चीज़ का करता है। सो बिजनेस लोन्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते थे जिसको बोलते थे PD, कॉल्ड पर्सनल डिस्कशन। तो क्रेडिट मैनेजर खुद, सो लेट्स अज्यूम आई वाज इनटू क्रेडिट, सो आई यूज्ड टू इन दैट वाज अ पॉलिसी विद फ्यूचर ग्रुप, आई वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर मनी। तो फ्यूचर मनी की क्रेडिट पॉलिसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उस समय ऐड हुआ था विच वॉज कॉल्ड पर्सनल डिस्कशन। तो PD बोलते थे। तो जिसी को भी 10 लाख से या 15 लाख से ऊपर का बिजनेस लोन हम दे रहे हैं, उसको क्रेडिट का बंदा खुद जाके वो बंदे के प्रीमाइसेस पे जाके आधा घंटा मीटिंग करेगा। तो मुझे उसकी फैक्ट्री पे जाना है या उसके बिजनेस की ऑफिस में जाना है, समझना है कि क्या बिजनेस कर रहा है, मेरे को इंश्योर करना है उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सही दिए थे नहीं दिए थे, उसका इंटेंशन समझना है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैड टू डू इन कैप्चरिंग 30 मिनट्स, कि उसका इंटेंशन देखना है कि वो पैसा देगा या इंटेंशन है कि वो पैसा लेके भाग जाएगा, बिजनेस सेटअप कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी हैड टू स्टडी, एंड देन वी यूज्ड टू टेक अ कॉल, इसको पैसा दे या ना दे। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस कैसे होते थे हमारे, आई विल टेल यू स्मॉल थिंग्स। वी हैड एक्सीलेंट क्रेडिट टीम, मी एंड वी वर लाइक 7 people एंड वी वर एक्सीलेंट, बेस्ट ऑफ द टीम आई वुड से ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल। और आज भी शायद जो हम 5-6 लोग थे, सब कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे को जानते भी है। हम लोग ऐसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस करते थे कि कोई बंदा अगर 20 लाख का लोन ले रहा है, उसका टोटल एक्सपोजर बिजनेस का 1 करोड़ है, तो उसके पास उसका जो लड़का है वो कौन सी स्कूल में पढ़ता है, क्या उसके पास कोई क्लब मेंबरशिप्स है जैसे कि कर्णावती या राजपथ, क्या उसके पास कौन सा गाड़ी है, वो कहाँ पे रहता है, कौन सी लोकेलिटी में रहता है, उसका शॉपिंग पैटर्न क्या है। आई मीन एट टाइम्स गोइंग टू देयर ऑफिस वी कम टू नो उनको मिलके कि वो कौन सी ब्रांड का कपड़ा पहनता है, कैसे जूते पहनता है, कैसे चश्मे पहनते हैं। सो दीज आर दी स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू एंश्योर, बिकॉज बिजनेस है मेरे को लोन देना है, डिफॉल्ट कर गया तो सीधा 25 lakhs का लॉस हो जाएगा। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू एंश्योर व्हेन वी टॉक ऑफ the occupation and the business। इवन बिजनेस के बारे में समझना है कि अगर बंदा क्या बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का स्कोप क्या है, इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है।
सो वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरनल डेटा कि कोई भी इंडस्ट्री का अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ रेट 10% है, 15% है, 20% है, और ये बिजनेस का ग्रोथ रेट क्या है. काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी बिजनेसेस अपने फिनेंशियल्स को फेक करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो 20% 30% से ग्रो कर रहे हैं. इसीलिए दिखाते हैं और इसीलिए अपनी बुक्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि उनको ज़्यादा एक्सपोजर और ज़्यादा लोन मिले. तो हमको वो भी इंश्योर करना है. सो दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर. देन कम्स द फैमिली स्टेटस. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो रिस्क ऑफ अ इंडिविजुअल, ओके, रिस्क ऑफ अ इंडिविजुअल हु हैज़ अ लार्ज फैमिली लाइबिलिटी, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ डिपेंडेंट है, बच्चे भी डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर रिस्क ज़्यादा है. काफ़ी बार इंडिविजुअल, वी ऑल्सो हैव, वी यूज टू थिंक दैट एक इंडिविजुअल जो अकेला रहता है ना, उसका भी रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि इंडिविजुअल जिसका कोई फैमिली नहीं है, जिसका कोई है ही नहीं, वो पैसा लेके भाग जाएगा तो ढूंढेंगे कहाँ पे. सो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू सी. रेसिडेंशियल स्टेटस, कितने सालों से, विच वी टर्म स्टेबिलिटी ऑफ रेसिडेंस, कि वो कितने साल से एक जगह पे रह रहा है. काफ़ी बार होता है कि कोई बंदा अहमदाबाद में 5 साल से रह रहा है, पर उसके बाकी, और उसका एज 40 ईयर्स का है, तो बाकी 35 ईयर्स वो कहाँ रहा था, और 5 साल से ही अहमदाबाद में रह रहा है. तो मेरे लिए रिस्क है वो देना, क्योंकि 5 साल इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म टू गिव अ एक्सपोजर ऑफ अ हायर अमाउंट. So these are few factors. I'm trying to tell you the practical aspects of it, so that we remember those things when we talk and when we start understanding it, right? So based on these factors, okay, every bank or every NBFC have their own internal credit policy. What does a credit policy means? The banks, this is a document, very interesting, amazing document. So I was also lucky to be a part of a group which formulated a credit policy for a product. So I was really lucky, and we actually worked really hard, and it was really fun कि हमने क्रेडिट पॉलिसी बनाया था, एक पॉलिसी जो नेशनल वाइज रोल आउट हुआ था. तो क्रेडिट पॉलिसी में बैंक और एनबीएफसी ये डिसाइड करता है कि किसको लोन देना और क्या बेसिस पे लोन देना, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना, क्या आईआरआर पे रेट लोन देना, कौन सी चीज़ों को असेस करना. लेट्स से देयर वर लॉट ऑफ रेशियोज व्हिच वी कम इनटू व्हेन वी टॉक ऑफ क्रेडिट पॉलिसी. अगर कोई कंपनी को लोन देना है तो उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, उसका डेब्ट कवरेज रेशियो क्या होना चाहिए, उसका असेट टर्नओवर रेशियो क्या होना चाहिए, उसका टोटल परसेंटेज ऑफ वो जो भी इनकम ले रहा है उसमें से कितना परसेंटेज हमारा ईएमआई का होना चाहिए, कितना परसेंटेज उसका एजुकेशन का होना चाहिए. So there are so many factors which are numerical, quantitative, and also qualitative. So the things which I said, we try to inculcate everything into it, and this is the credit policy of every bank or every NBFC, and they have to stick to it. कोई भी क्रेडिट मैनेजर है उसको स्टिक करना पड़ता है उसकी बैंक की क्रेडिट पॉलिसी से. क्रेडिट पॉलिसी के बाहर कोई डिसीजंस लिए नहीं जाते. कुछ बार लिए जाते हैं जिसके अंदर उनको स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है. काफ़ी बार होता है कि क्रेडिट पॉलिसी के अगेंस्ट है पर अप्रूवल लेना है. आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल. व्हेन आई वाज वर्किंग विथ फ्यूचर मनी, हम लोग कंज्यूमर फिनेंस करते थे. सो वी यूज्ड टू गिव लोन्स. होम टाउन आपने सुना होगा. तो होम टाउन में अगर कोई ख़रीदने आता है तो होम टाउन में ऐसे वो जो भी बाय करता है उसको हम डायरेक्टली फिनेंस दे देते हैं. सो आई रिमेंबर, वी ऑल नो अशरफी, राइट? आपने सुना होगा, अशरफी करके ब्रांड है. तो देयर 3-4 अशरफी, ग्रीन अशरफी, रेड अशरफी. तो देर वॉज अशरफी फैमिली हु बॉट गुड्स वर्थ ₹7.5 लाख और 5.5 लाख. उन्होंने चिमनी लिया था, एसी लिया था, किचन सेट लिया था, सोफ़ा सेट, काफ़ी चीज़ें ली थी. पर उनके इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ 1.5 या 2 लाख के थे. ओके, सो द इनकम टैक्स रिटर्न, देयर इनकम प्रूफ वॉज लेस. इनकम प्रूफ कम था और उनको लोन ज़्यादा चाहिए था. पर हम सबको पता है अहमदाबाद में कि अशरफी का डेली कैश काउंटर वगैरह कितना होगा. सो वी ऑल्सो हैड मल्टीपल्स. तो क्रेडिट में हम लोग क्रेडिट पॉलिसी में ये भी मल्टीपल डालते हैं कि अगर कोई बिजनेस इंडिया में है ना, सब डिस्क्लोज नहीं करते. अगर कोई 100 रुपये का इनकम टैक्स या 100 रुपये का अपनी बुक में सेल्स दिखाता है ना, तो उसका 3 टाइम्स एक्चुअल बिजनेस होता है ना. उसका एक्चुअल सेल 300 रुपये का होगा, पर वो दिखाई खाली 100 रुपये रहा है क्योंकि उसको टैक्स बचाना है. तो ये ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे काउंटर्स होते हैं जो हम क्रेडिट पॉलिसी में डालते हैं. तो यहाँ पे उस इवन 3 टाइम्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसका लोन अमाउंट ज़्यादा हो रहा था. तो ऐसे केस में हमने स्पेशल अप्रूवल लिया था हमारे क्रेडिट हेड से. एंड आई रिमेंबर द क्रेडिट हेड ट्रैवल टू अहमदाबाद. वी वेंट ऑन, आई
टुक हिम टू द वेरियस अशरफी काउंटर्स। हमने एक दिन में कम से कम 7 से 8 अशरफी के काउंटर्स पे आइसक्रीम खाया था और उनको बताया था कि सी दिस इज़ व्हाट दे ओन एंड दिस इज़ व्हाट दे आर, सो गिविंग देम अ लोन ऑफ दिस एक्सपोजर इज़ ओके। वो हमारी क्रेडिट पॉलिसी के अगेंस्ट था, फिर भी हमने लोन दिया था। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्रेडिट पॉलिसी के बाहर जाके भी लोन दिया जाता है, पर ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं एंड दिस बिकम्स केस स्टडीज एट टाइम्स। सो क्रेडिट पॉलिसी इज़ काइंड ऑफ 10 कमांडेंट्स ऑफ क्राइस्ट कि उसके बाहर कुछ नहीं करना है, इसी के बेसिस पे देना है। और अगर लोन रिजेक्ट हो गया, क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट हेड ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उसको रिकलेक्ट कोई नहीं कर सकता। तो क्रेडिट पॉलिसी इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑफ ईच बैंक। This is very dynamic document, it is a very detailed document and it keeps on changing from bank to bank। कुछ बैंक रिस्क अवर्स होती है, कुछ बैंक रिस्क टेकन होती है, चलता है। काफ़ी बार मैंने कहा कि हम काफ़ी बार हम कोलेट्रल पे लोन दे देते थे कि अगर बंदे का इनकम कम है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ पार्ट ऑफ माय क्रेडिट पॉलिसी विच वी डिड। अगर बंदे का इनकम कम है, लेकिन लेट्स से उसका 1.5 लाख का इनकम टैक्स का रिटर्न है, लेकिन वो साल का 3.5-4 लाख का तो LIC पॉलिसी भर रहा है, तो अगर उसके पास LIC की प्रीमियम पॉलिसी की 3 साल की रिसिप्ट है, तो हम उसको 5 लाख का लोन दे देंगे। दैट इज़ कोलेटरल लोन। सो दिस आर द काइंड ऑफ क्रेडिट पॉलिसी विच डिपेंड। सो जैसे वी वर ओपन टू टेक अ रिस्क बेस्ड ऑन द LIC, क्योंकि हमको पता है कि बंदा अगर 3.5 लाख का LIC का प्रीमियम भर रहा है, तो LIC का प्रीमियम नॉर्मली कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करता है। तो अगर LIC का प्रीमियम 3.5 लाख का भर रहा है, तो वी आर फाइन, वी कैन गिव हिम एन एक्सपोजर ऑफ दैट अमाउंट। सो मे बी अ सर्टन बैंक वुड टेक दैट, सर्टन बैंक वुड से LIC का जो भी प्रीमियम भर रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है, विल नॉट गिव हिम अ लोन। तो हर एक बैंक का अपना क्रेडिट पॉलिसी होता है, अपना थॉट प्रोसेस होता है, और उस हिसाब से वो कॉल्स लेते हैं। इसीलिए काफ़ी बार होता है कि मेरा एक बैंक में लोन रिजेक्ट हो गया, तो मैं दूसरी बैंक में करता हूँ और वहाँ पे मेरा लोन अप्रूव हो जाता है। So this is briefly about credit policy. Now let's take into consideration how a home loan credit appraisal happens. कि let's say for instance, so credit policy हर एक का अलग अलग होता है, बट लार्जली जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस लार्जली हर एक जगह पे सेम रहेगा। इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें कुछ प्लस होगी या छोटी मोटी चीज़ें शायद कुछ माइनस होगी, बट लार्जली वट एवर आई विल बी टॉकिंग इज सिमिलर टू ईच ऑफ द प्लेसेस, राइट? So let's talk on a product, home loan. We all know what a home loan is. जब भी हम घर बाय करते हैं, तो घर बाय करने के लिए जो लोन मिलता है उसको हम होम लोन कहा जाता है। होम लोन बेसिकली हमको नेशनल जो होम फाइनेंस कंपनीज है वो देती है। इसकी LIC हाउसिंग फाइनेंस है, या ICICI होम फाइनेंस है, या ग्रो फाइनेंस है, या फिर सो ग्रो फाइनेंस इज नाउ मर्ज इनटू बंधन बैंक। सो ग्रो फाइनेंस अभी रहा ही नहीं है, बट स्टिल आई सेड, सो आई कीप इट। और यू फ्रॉम वेरियस बैंक्स, HDFC ले लो, PNB ले लो, ICICI ले लो, ये सब बैंक्स देती है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई फॉर अ लोन विथ ऑल दी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। आपको कितने का लोन चाहिए, क्या अमाउंट का लोन चाहिए। सो जी होम लोन में ना आजकल एक ऐसा भी चल रहा है कि लोग पहले अप्लाई करते हैं और प्रॉपर्टी बाद में डिसाइड करते हैं। लोग अप्लाई करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा लेते हैं कि भाई मेरा एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी, एक बार एलिजिबिलिटी पता लग गया कि भाई मेरे को 50 लाख का लोन मिल सकता है, तो उस बेसिस पे फिर मैं प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू करता हूँ। और एक बार मेरा सॉफ्ट अप्रूवल आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट, एंड देन आई गो एंड फाइंड द प्रॉपर्टी, एंड वेन एवर आई फाइंड द प्रॉपर्टी द बैंक वुड क्विकली अप्रूव द लोन्स। सो दैट इज़ ऑल्सो वन वे विच अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, है ना। तो खाली एप्लीकेशन करते हैं और अप्लाई करके वो ढूंढते कि उनका एलिजिबिलिटी क्या है। तो उस केसेस में what happens, first thing is the loan, then there is a document verification, they do a complete document verification of the individual। जो मैंने बताया उसने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स दिए हैं, प्रूफ दिए हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस दिया है, वो चेक करेंगे। द नेक्स्ट कम्स इज टेलीफोनिक वेरिफिकेशन, जिसको हम in all kind of loans there is a telephonic verification which happens, which means आपने जो नंबर्स दिए हैं ना, वो पहले नंबर्स को वेरीफाई किया जाता है कि जैसे आपने आपके घर का नंबर दिया है, तो घर के लैंडलाइन पे आपको फ़ोन आएगा और आपको बैंक या NBFC पूछेगा कि हाँ मिस्टर राकेश इज स्टेइंग एट दिस लोकेशन, हाउ लॉन्ग इज़ मिस्टर राकेश स्टेइंग एट दिस लोकेशन,
देन दे विल ऑल्सो आस्क द रिलेशन ऑफ द पर्सन हु इज टॉकिंग, यू नो, उन्होंने आपको फ़ोन किया तो पूछेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो राकेश जी के कौन लग रहे हो, सो यू आर इज वाइफ और यू आर इज सन और डॉटर और फादर और मदर. They'll also call, they'll do a telephonic verification at your commercial or your occupational or your official number which you have shared. और ट्राई करते ये लोग लैंडलाइन पे करते हैं, तो लैंडलाइन से ही पता, आपका मोबाइल नंबर तो कोई भी फेक कर सकता है. सो दे कॉल ऑन द लैंडलाइन एंड दे चेक वेदर यू आर वर्किंग देयर और नॉट. दे ऑल्सो कॉल 2 रेफरेंसेज, तो हर एक एप्लीकेशन फॉर्म में 2 रेफरेंसेज होते हैं. वो रेफरेंसेज को कॉल करके पूछेंगे कि भाई आप इनको जानते हो, एंड इफ़ दे आर फाइन देन दे विल गो अहेड विद द क्रेडिट रिपोर्ट. तो क्रेडिट रिपोर्ट वो सिबिल में जाके आपका क्रेडिट रिपोर्ट निकालेंगे एप्लीकेंट का. अगर क्रेडिट रिपोर्ट ठीक है, ओके, इफ़ दे फाइंड द क्रेडिट रेटिंग टू बी ओके, देन इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ थ्रू, अगर आपने प्रॉपर्टी डिसाइड कर दिया है कि कौन सी प्रॉपर्टी मेरे को बाय करना है, जो 9 आउट ऑफ 10 केसेस में होता है, तो फिर वो प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन पे जाएगा. पहले क्या करेंगे, पहले जो बंदा अप्लाई कर रहा है दे विल ट्राई टू वेरीफाई द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग फॉर द लोन. Once that person is through, they are satisfied with that individual, his credit, okay, so they'll do the credit report, they'll do the eligibility check and everything. credit report पे eligibility भी हो जाता है ना. credit report निकाला तो पता लग जाएगा कि ये बंदे को कितना एलिजिबल है, कितना लोन दे सकते हैं, उसका करंट इनकम क्या है, फिनेंशियल्स क्या है, ये सब यहाँ क्रेडिट लेवल पे हो जाता है. तो स्टेप नंबर 4 पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाता है ना, सॉफ्ट एलिजिबिलिटी, कि भाई आपको इतना पैसा मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कि आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो वो प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए. क्लियर का मतलब इट शुड बी अबाउ एनी एम्बिग्विटी. कि काफ़ी बार होता है ना कि आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी जिससे बाय कर रहे हो वो बंदा उसका ओनर ही नहीं है, कोई और ही ओनर है, और आप उससे बाय कर रहे हो, तो बैंक ऐसे केसेस में नहीं लेता है. तो काफ़ी बार होम लोन इसलिए भी लेना चाहिए कि अगर आप होम लोन लेते हो ना, तो आप जो भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट सब क्लियर आपको मिल जाते हैं, है ना, सो दैट इट्स बीन वेरीफाइड बाय थर्ड पार्टी, इट इज़ बीन वेरीफाइड बाय बैंक. सो एक बार क्रेडिट एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाने के बाद फिर बैंक सोचती है कि चलो ठीक है, अभी देखते हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी बाय करने वाला है. तो आप जो भी प्रॉपर्टी बाय करने वाले हो उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए. टाइटल क्लियर का मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी एम्बिग्विटी, इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी थिंग्स. यू नो, काफ़ी बार होता है कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी कोई बैंक के नाम पर मॉर्गेज है, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी और के नाम पे चल रही है, तो आपको एक बैंक के पैनल के एडवोकेट के पास सभी डॉक्यूमेंट आपके देने हैं, और वो एडवोकेट अपने हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेगा. कॉरपोरेशन में से, गुमास्तारा में, हर एक जगह पे से ही विल ट्राई टू फाइंड आउट दी ओनरशिप डिटेल्स, एंड देन दे विल गिव अ टाइटल क्लियर दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ फ्री फ्रॉम एनी एम्बिग्विटी. तो ये प्रॉपर्टी सही है, इसके ऊपर आप लोन दे सकते हो. उसके बाद बैंक क्या करेगा, बैंक ये ट्राई करेगा कि मैंने अगर 50 लाख का लोन मांगा है, तो बैंक ट्राई करेगा क्या ये प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख या जो ये बंदा पैसे मांग रहा है उतनी वैल्यू का है या नहीं है. मैं तो बता रहा हूँ है, मेरे को सेलर इस प्राइस पे दे रहा है, तो बैंक एक एक्सटर्नल सर्टिफाइड वैल्यूएटर से इस चीज़ का वैल्यूएशन रिपोर्ट निकलवाएगा. तो वैल्यूएटर प्रॉपर्टी पे जाएगा, प्रॉपर्टी को देखेगा, उसके फ़ोटो खींचेगा, मेजर करेगा, डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, उस एरिया के प्राइसेस देखेगा, लास्ट 5-10 डील्स जो उस एरिया में हुई है, क्या प्राइस पे वहाँ पे सेल हुआ है वो चेक करेगा, और फिर वो बताएगा बैंक को कि भाई इसका इतना वैल्यू हो रहा है. ये होने के बाद बैंक को श्योरिटी हो जाएगा कि चलो भाई ये वैल्यूएशन पे हम इतना अमाउंट का लोन दे सकते हैं, टाइटल क्लियर है, बंदे का एलिजिबिलिटी भी सही है. उसके बाद वो जाके खुद बैंक ऑफिशियल खुद जाके साइट को विजिट करेगा. When we say site visit means बैंक will go and check the property on its own. और बैंक बोलेगा चलो ठीक है, थर्ड पार्टी ने इतना सा वैल्यूएट किया है, पर मुझे पैसा देना है, मुझे भी घर देखना है, कि मुझे भी देखना है कि आप कहाँ पे क्या बाय कर रहे हो, आप कोई फेक तो नहीं कर रहे हो. काफ़ी बार होता है कि बंदा एडवोकेट को पैसा दे के गलत रिपोर्ट ले लेता है, वैल्यूएशन से गलत रिपोर्ट ले लेता है, तो ये बोलता है भाई मैं खुद चलूँगा, मैं खुद देखूँगा. तो बैंक खुद जाके भी एक बार ये सब डॉक्यूमेंट्स को देखता है, और उसको साइट वेरिफिकेशन ओके लगता है तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है. यू नो, द टफेस्ट पार्ट इन अ होम लोन और द टफेस्ट लोन इज़ अ होम लोन, क्योंकि कम से कम 20-25 तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं ना. देयर इज अ मोटा फाइल विच कम्स व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ होम लोन. आई नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इनटू होम लोन एंड आई नो इट्स अ टफ जॉब. इवन व्हेन आई हैड टू टेक अ होम लोन, नोइंग एवरीथिंग मेरे को भी डिफिकल्ट करवा दिया था इन्होंने. सो इट्स इंटरेस्टिंग, बट येस, the documentation, if you can do a home loan, you can do other parts as well.
डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वो एक अप्रूवल लेटर देते हैं जो एप्लीकेंट है उसको, कि भाई देखो हम इतना पैसा तुमको दे सकते हैं, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकते हैं, इतने समय के लिए दे सकते हैं, इतने टेन्योर के लिए ले सकते हैं, और आपका ईएमआई ये होगा। तो अप्रूवल लेटर में पूरा लोन स्केड्यूल होता है। लोन स्केड्यूल का मतलब कि आपके पहले इंस्टॉलमेंट से अगर 40 इंस्टॉलमेंट्स है तो हर एक इंस्टॉलमेंट का डिटेल आपके लोन स्केड्यूल में होता है। अगर आप वो लोन स्केड्यूल को ओके करते हो तो आपको वो लोन स्केड्यूल पे साइन करना है, आपको मॉर्गेज डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, और फिर आपका डिसबर्समेंट होता है, और फिर सेल डीड के साथ मॉर्गेज का डीड होता है। मॉर्गेज का मतलब आपका जो प्रॉपर्टी होगा पास, एंड देन यू गेट द हाउस इन योर हैंड। एंड दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स फ्रॉम 7 days to 45 days फ्रॉम वेरियस बैंक टू बैंक। कुछ बैंक होते हैं जो बहुत स्लो चलेंगे SBI काफ़ी बार 3-3 महीने 4-4 महीने कर देता है। काफ़ी बार कुछ होते हैं जो एक ही हफ्ते 10 दिन में कर देते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एफिशिएंट बैंक्स हु डू इट। होम लोन इज बीन गिवन इन इंडिया, so I hope I have been able to explain how this happens. The documentation is the most tough part here, so you should have a legal knowledge, a good legal knowledge into understanding and giving home loans, right? कुछ होता नहीं है। आपका लोन एप्लीकेशन होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो हमने ऑलरेडी बात किया है, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन होता है, क्रेडिट रिपोर्ट निकलता है, और क्रेडिट असेसमेंट होता है। और क्रेडिट असेसमेंट के बाद पता चलता है कि इसको लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसमें एक एडिशन होता है कि काफ़ी बार कुछ बैंक्स, सब बैंक्स नहीं, पर कुछ बैंक पर्सनल वेरिफिकेशन करती है। इवन क्रेडिट कार्ड इज़ काइंड ऑफ अ पर्सनल लोन, सो दे डू अ पर्सनल वेरिफिकेशन कि आपके घर पे आएंगे और आपके घर पे चेक करके जाएंगे कि भाई आप यहीं रहते हो या नहीं रहते हो। आपके ऑफिस पे जाके चेक करेंगे यहीं रहते हो नहीं रहते हो, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार आपके पास आके वो देख के जाएगा आपने जो भी सबमिट किया है, और उसके बाद अप्रूवल लेटर and then disbursement. Normally this personal loan appraisal happens from 1 day to 3 days, okay, and काफ़ी बार 7 दिन 8 दिन भी लग जाते हैं, but a lot of efficient do it in the same day. आज ही के दिन आपको लोन दे देते हैं। I remember in the past 2005 से लेके 2008 या 9 was the period जहाँ पे ये पूरा NBFC loans was at the peak, ऐसा लगता था कि हर एक बंदा लोन के बिजनेस में है और हर एक बंदे को लोन दे रहा है, क्योंकि तब हमने शुरुआत की थी। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज द बेस्ट टाइम आई रिमेंबर टू, इट वॉज सो एक्साइटिंग। तो काफ़ी बार ऐसा लगता था लाइक आई एम श्योर रविराज इज वर्क विथ सिटी बैंक, ही वुड अग्री। तो सिटी बैंक में उस समय पे ऐसा था कि पर्सनल लोन के लिए वो लोग लोकली नॉर्मली क्या होता था कि अगर किसी ने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है तो हम लोग क्रेडिट अप्रेजल करते थे, उसके बाद उसका अप्रूवल होता था, और अप्रूवल के बाद डिसबर्सल में 1 दिन लगता था, क्योंकि डिसबर्समेंट का चेक बॉम्बे से आता था। सो आर क्रेडिट द बैंक दे यूज्ड टू कम फ्रॉम द चेक यूज्ड टू कम बाय अ कुरियर ईदर टू अस और टू द कस्टमर्स होम ऑफिशियल एड्रेस इन अ कुरियर। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ सिटी बैंक स्टार्टेड अ स्ट्रैटेजी जहाँ पे वो लोकली चेक प्रिंट करके देने लगे। तो एक ही दिन में द डे इट इज़ बीन अप्रूव्ड, द डे इट वाज डिसबर्स, सो दैट वाज द वे थिंग्स वर हैपनिंग। सो इंटरेस्टिंग। सो दिस इज बेसिकली अबाउट पर्सनल लोन, एंड लेट्स लास्टली टॉक अबाउट कंज्यूमर लोन्स। सी in the current scenario, consumer loans are picking up like anything. These are the hot selling product because it's very secure, the ticket size is less, and the customers have less EMIs and they generally tend to pay. तो आजकल आप देखोगे कि बजाज फाइनेंस, so the growth of Bajaj Finance has been tremendous. It has been mind blowing in the last couple of years, and every point of sale, all the larger point of sale, from your Croma stores to your Reliance Digital stores to your Westside stores or even Tata each stores, there is a point of sale at which you have a Bajaj Finance desk जहाँ पे आप 500 से लेके 50,000 का प्रोडक्ट बाई करो and immediate you get a loan. I think somebody have unmuted themselves, so I would appreciate if you can mute yourself. Okay, somebody have unmuted themselves. If we talk of the end, so there is some disturbance in the entire thing. So the one would request you to just mute yourself. So here it is simple. Credit score, approval and disbursement, and the entire process happens in 2 to 6 hours. I'll tell you, I have been a part of this process, and we had the record 4 hours disposal. 2008
we at Future Group had the first of its kind policy 4 hours अप्रूवल रेट. तो अगर आप होम टाउन में जाते हो, उस समय पे इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार था फ्यूचर ग्रुप का, बिग बाज़ार था जहाँ पे आपको एसी, ओवन, रेफ्रिजरेटर ये सब बिकता था, फर्नीचर बिकता था होम टाउन में. आप होम टाउन में आओ. सो यू नो किशोर बियानी हैड एन अमेजिंग फ्यूचर. वॉट एवर ही यूज टू थिंक, ही हैड अ फैंटेस्टिक थॉट प्रोसेस. वॉट ही सेड इज़ कि पॉइंट ऑफ सेल पे ही हमको बंदे को क्रेडिट देना है. तो अगर बंदा टीवी देखने आ रहा है और अगर उसको टीवी पसंद है लेकिन पैसा नहीं है, तो हम उसको वहीं पे लोन देंगे और हम इतना फास्ट लोन को अप्रूव करेंगे कि वो बंदा घर पे टीवी लेके ही जाए. यू नो, यू ऑल नो दिस स्ट्रैटेजी. यू नो, वी हैव दिस टच एंड फील थिंग इन इंडिया. तो अगर प्रोडक्ट को मैंने छू के पसंद कर दिया है और प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग गया है और मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो मैं टेम्प हो जाऊंगा कि मैं 1/3 इंस्टॉलमेंट 33% डाउन पेमेंट भर के प्रोडक्ट को आज ही घर ले जाऊँ. सो वी यूज टू डू दिस इन जस्ट 4 hours, रिकॉर्ड 4 hours, एंड इट वॉज अमेजिंग. सो इट वॉज फन. वी वर द फर्स्ट वन टू डू इट. और पॉइंट ऑफ सेल पे लोन देने का, सो उस समय पे सिर्फ जी कंट्री वाइड और जी मनी. सो थैंकफुली आई ऑल्सो वर्क विद जी बिफोर फ्यूचर मनी. तो जी वॉज कंज्यूमर लोन्स में नंबर 1 था कि जी कंज्यूमर लोन्स का बादशाह. देवर गिविंग लोन, देवर दी ओनली कंपनी गिविंग लोन्स टू फॉर रेफ्रिजरेटर और स्कूटर और ऑटो एंड अदर थिंग्स. एंड फ्यूचर ग्रुप वॉज दी अनदर वन जिसका खुद का सेल पॉइंट ऑफ सेल्स था, जो खुद बिग बाज़ार में या इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार पे या होम टाउन पे बेच रहा था. तो उसके लिए बहुत ईजी था क्रेडिट को देना. एंड यू शुड डू इट इन जस्ट 4 hours. इट वॉज फन. तो काफ़ी बार फेस्टिव सीजन में भी रिमेंबर दिवाली और दे हैड दिस 5 days सेल. रिपब्लिक डे पे वो 5 दिन बिग बाज़ार के बड़े स्टोर पे 5 दिन सेल चलता था. वो 5 दिन हम दिन की 100 200 लोन्स करते थे पूरे गुजरात में. सो आई यूज टू टेक केयर ऑफ एंटायर गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जहाँ पे ये स्टोर्स थे. तो दिन के हम 100 200 लोन्स देते थे. इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज फन. तो कंज्यूमर लोन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कस्टमर आपके यहाँ पे है. और एडिशनल बेनिफिट ही होता है कि यू नो बिग बाज़ार में और जैसे क्रोमा में जब आप जाते हो, तो क्रोमा में ऑलरेडी आप क्रोमा के कस्टमर हो, तो क्रोमा के पास ऑलरेडी आपका एक हिस्ट्री खुद का है. तो क्रोमा को आपका परचेज साइकिल पता है कि आप कब कितना परचेज करते हो. तो वैसे समय पे उन कस्टमर्स को लोन देना बहुत आसान हो जाता है. दूसरा, द लेवल ऑफ कस्टमर्स हु ड्रॉप इन टू सच बिग स्टोर्स टू बाई प्रोडक्ट्स, दे ऑलरेडी हैव अ सर्टन लेवल ऑफ क्रेडिट. तो आई रिमेंबर हम लोग अगर कोई क्रेडिट कार्ड से अपना डाउन पेमेंट देता था, यू नो क्रेडिट कार्ड से अपना डाउन पेमेंट देता था, तो उसको 1 घंटे में लोन अप्रूव कर देते थे. क्योंकि क्रेडिट कार्ड है बंदे के पास, विच मीन्स जो बैंक ने उसको क्रेडिट कार्ड दिया है वो बैंक ने ऑलरेडी उसका क्रेडिट अप्रेजल करके ही दिया होगा. और अगर वो 15,000 या 10,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, तो उसके क्रेडिट का बैलेंस इतना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमको उसको 50,000 का एक्सपोजर देने में इशू नहीं है. तो क्रेडिट कार्ड से आप पे कर रहे थे, दैट वाज अ पार्ट ऑफ इंटरनल आर क्रेडिट पॉलिसी यूज टू अप्रूव इन जस्ट 1 hour. तो दिस वर द थिंग्स विच यूज टू हैपन, right? So these are briefly the things, and people also can fake all these things. I'll give you an example कि लोग लोन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोग गलत डॉक्यूमेंट्स देके भी लोन दे जाते हैं. एंड इट ऑल्सो हैपन्स इन कंज्यूमर लोन. वन ऑफ माई कलीग हैड अप्रूव्ड अ लोन ऑफ अ AC एंड दैट पर्सन गेव ऑल द डॉक्यूमेंट्स फेक. उसने अपना पैन कार्ड फेक दिया था, रेजिडेंशियल, ऑफिस एड्रेस सब फेक था. और इतने लेवल का फेक था कि बंदा जब वेरिफिकेशन के लिए गया तो वेरिफिकेशन में भी हमको सब वही मिला जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से था. पर जिस दिन से वो बंदा AC लेके गया, डिलीवरी हो गया प्रोडक्ट का, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट आया, उस समय पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट हो गया बंदा. और जब 1 महीने के बाद डिफ़ॉल्ट हुआ और हम मार्केट में उसको यू नो द टीम वेंट, कलेक्शन टीम वेंट एंड फाइंड आउट द फैक्ट, तो पता चला उसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे सब फेक थे. और उसने सिर्फ AC का नहीं, मार्केट में और भी 5-6 चीज़ों का करके वो भाग गया था. सो वी कुड नॉट फाइंड इट, अनट्रेसेबल हो गया था. सो अप्रेजल अगर गलत हो जाता है, ध्यान नहीं रखा जाता है, तो ऐसा भी होता है. दैट्स अ रिस्क. सो दीज आर बेसिकली द 3 काइंड्स ऑफ लोन विच आई explained you, home loan, personal loan and consumer loans. Let's finally talk on certain thing on the fintech startups. Okay, so you know when you talk of this fintech companies, तो ये fintech companies are, you know, like nowadays they are giving loans
at the craze, so just in couple of hours they're approving loans. जैसे अगर आप देखें तो मैंने कुछ आपको नाम लिखे हैं यहाँ पे. So these people easily, जैसे लेजी पे, लेंडिंग कार्ड, just go online, get on their website, just talk to them, and in just couple of minutes they approve a certain loan to you, right? So this is the new way of credit which is happening. और इसको हम माइक्रो क्रेडिट बोले या कुछ भी बोले, तो ये लोग कैसे लोन दे रहे हैं. So let's say I'll just brief you about the products which is happening. LazyPay is kind of, I'm sure इसमें से ज़्यादा के बारे में आप लोगों को पता हो. आई अज्यूम कि आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं है तो जस्ट गो बैक एंड टॉक अबाउट रीड अबाउट इट. LazyPay इज़ समथिंग विच ऑफर्स यू टू पे लेटर सर्विस. कि मैंने अगर फ्लिपकार्ट से कुछ बाय किया है, तो जैसे फ्लिपकार्ट में पेमेंट ऑप्शंस में पेटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वॉलेट्स है, वैसे ही LazyPay आता है कि मैं बाय कर देता हूँ फ्लिपकार्ट से, और अगर मेरे पास जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं है या कोई और कुछ नहीं है तो मैं LazyPay से पे करता हूँ. तो LazyPay से पे करने का मतलब कि मैं आज बाय कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पेमेंट 15 दिन 20 दिन के बाद करना है, जो क्रेडिट मुझे LazyPay देता है. एंड LazyPay जस्ट टेक्स योर, सो ऑल दीज कंपनी, लेंडिंग कार्ड अगेन, लेंडिंग कार्ड इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस कंपनीज in credit in the current times. They are a excellent case study on how you can grow by lending digitally to small businesses. So lending card institutional loans देता है. lending card basically ये करता है कि वो कस्टमर से अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, एंड ऑनलाइन दे हैव अ क्रेडिट टीम. तो कस्टमर के डॉक्यूमेंट विदाउट एनी पर्सनल मीटिंग, they would just access to all the documents, उनके इनकम टैक्स रिटर्न, GST, XYZ, and then they will let them know कि आपको हम certain amount का पैसा दे सकते हैं. And the dispersal also happens online. So lending card is an amazing example of institutional lending. Simple is again the same manner कि आप फासोस से या जोमेटो से खाना ऑर्डर करो, पैसा बाद में दो. इंस्टा कैश इज़ अगेन लाइक दैट. अर्ली सैलरी इज़ अनदर कंपनी. क्रेड इज़ समथिंग, क्रेड इज़ ऑफरिंग, अगर आप रेंट पे करते हो, ठीक है, आपका घर है और आपको रेगुलर रेंट पे करना है, तो क्रेडिट आपका रेंट पेमेंट जो है उसका आपको 1 मंथ का क्रेडिट दे रहा है. तो अगर आप हर महीने 20,000 का रेंट पे करते हो, तो वो 20,000 सबसे पहले क्रेडिट पे करेगा और फिर आपको 1 महीने के बाद क्रेडिट को पे करना है. पेटीएम में अगर आप देखें तो पेटीएम पे लेटर या पेटीएम पोस्टपेड आया था, वो आपको एक सर्टन क्रेडिट लिमिट दे देता है कि आप अभी पेटीएम पोस्टपेड से करो. आई थिंक दे हैव जस्ट स्टॉप्ड द प्रोग्राम, बट पेटीएम पोस्टपेड था. ओला पोस्टपेड अगेन. सो लेट्स से ओला पोस्टपेड में ओला हैज़ गिवन मी अ क्रेडिट ऑफ 5,000 रुपीज़, एंड एवरी 15 days आई हैव टू रीपे. तो 15 दिन तक 5,000 रुपये तक अगर मैं ओला में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे उसको पैसा ही नहीं देना है, मुझे चिंता ही नहीं करना है मेरे पास पैसा है या नहीं है. ऑल आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू जस्ट कीप ऑन ट्रैवलिंग अप टू ₹5,000. 5,000 हो गया तो फिर मैं एक साथ ओला को जो भी मेरा अमाउंट हुआ है वो पे कर दूंगा और चलेगा. सो ओला पोस्टपेड इज़ एन अमेजिंग वे एंड इट हेल्प्स बेसिकली इन ट्रैवल. अमेजोन पे क्रेडिट, अमेजोन ने रिसेंटली इन द लास्ट 1 week देव स्टार्टेड अ पे क्रेडिट. तो आप अमेजोन पे में, अगर आपके अमेजोन का अकाउंट है तो अमेजोन पे के अकाउंट में जाइए और अमेजोन पे में फिलिंग सम सर्टन बेसिक थिंग्स, दे विल लेट यू नो व्हाट क्रेडिट इज़. ठीक है. किश्त, सो मेक माई ट्रिप, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मेक माई ट्रिप ने एक फिनटेक स्टार्टअप है किश्त, उसके साथ टाई अप किया है, तो वो आपको एक क्रेडिट लेता है. लेट्स से आई जस्ट गिव यू माई एग्जांपल. तो मेरा मेक माई ट्रिप का जो अकाउंट है उसमें मेक माई ट्रिप और किश्त ने मिलके मेरे को लेट्स से 1.5 लाख का क्रेडिट दिया है. तो मैं वो 1.5 लाख रुपये मेक माई ट्रिप के ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ और उसको मेरे को रीपे करना है EMIs में. तो अगर मुझे लेट्स से गोवा घूमने जाना है तो मेरे को पैसे नहीं है तो चिंता नहीं करनी है. मैं मेक माई ट्रिप पे जाके मेरा फ़्लाइट बुक करूँगा, मेरा होटल बुक करूँगा, पूरा का पूरा पैसा किश्त की क्रेडिट लाइन से दूंगा और फिर उसको मैं EMI में कन्वर्ट कर दूंगा. सो इट्स ईजी लाइक दैट. देयर इज़ अनदर थिंग लाइक लोन टैप, मनी टैप और ऐसे बहुत स्टार्टअप्स है. अभी ये स्टार्टअप्स कैसे आपको क्रेडिट देते हो? सो दीज स्टार्टअप्स हैव अ इंटरेस्टिंग मॉडल. सो लेट्स से अमेज़ॉन का मैं बात करूँ तो अमेज़ॉन पे मेरा अकाउंट कम से कम 5-6 साल से आई एम यूजिंग अमेज़ॉन. सो अमेज़ॉन ऑलरेडी नोज माई परचेज पैटर्न. अमेज़ॉन मेरे मोबाइल नंबर से जानता है कि मैं क्या क्या करता हूँ, मैं अमेज़ॉन प्राइम में क्या क्या देखता हूँ. तो अमेज़ॉन को मेरी हर एक चीज़ के बारे में पता है और मैं कैसे कैसे परचेज़ कर रहा हूँ.
और मैं वो परचेज़ करके पेमेंट कहाँ से करता हूँ, और मेरा एवरेज महीने का परचेज़ और एवरेज साल का परचेज़ क्या है। तो उस बेसिस पे अमेज़ॉन will also do a credit check, but they don't do civil reports, they use Experian and other things. So all these people, what they do is they take your mobile number, ठीक है, और मोबाइल नंबर से वो एक्सेस करेंगे, दे विल एक्सेस your files, they access to your device folders, they will access my device folders, they will access the credit of from Experian or Sibyl, they will see what all things I have, and then they give me a instant credit. जैसे I'll give you अमेज़ॉन, जस्ट मैंने अमेज़ॉन पे लॉगिन किया, जस्ट क्लिक, और मेरे जस्ट उस पर खुलते ही उन्होंने मुझे 25,000 का पे क्रेडिट दिया है। सो इट्स कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड। अगर मैं वो पूरा पैसा यूज़ कर दूँ और मैं पे ना करूँ तो अमेज़ॉन कुछ नहीं कर सकता, इट इज़ अनसिक्योर्ड। बट बेस्ड ऑन द एंटायर हिस्ट्री दे हैव गिवन मी दिस क्रेडिट। I don't know I will use it or not, but I always, whenever somebody is offering me, I always click on that and try to find it out, because you know the process, the way they are giving is more important for me to learn. Now let's say for instance Make My Trip Kist. So Make My Trip I've been using since a very long time. So what they did is they just used my mobile number, they took my PAN number, and then in just seconds they said this is your limit, use this whenever you want. Ola postpaid I have been using since a long time. So what happens in a longer term, ओला ने मुझे सबसे पहले दिया था 1500 रुपीज़ का पोस्टपेड किट। आई ट्रैवल अ लॉट, आई यूज़ ओला अ लॉट। तो ओला ने देखा मेरा एवरेज स्पेंड इतना है, मैं हर महीने रेगुलर उसको पे कर रहा हूँ, तो उसने धीरे धीरे 1500 से मेरा क्रेडिट लिमिट 3000 किया, 5000 किया, टुडे इट इज़ 10,000 रुपीज़ इज़ माई क्रेडिट लिमिट। पेटीएम पोस्टपेड एट दैट सेम इंस्टेंस। Lazy Pay started with 500, then they said okay 7,500, then they said 15,000. So just imagine with this new fintech startups, मेरे को क्रेडिट कार्ड का ज़रूरत नहीं है आज, है ना, अगर मेरे पास ये 3 स्टार्टअप है। सो आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स, यू नो, कि इफ़ आई एम लॉस्ट समवेयर एंड इफ आई हैव माई मोबाइल फोन, आई कैन स्टिल सर्वाइव, आई कैन ऑर्डर फूड ऑनलाइन, पे बाय लेजी पे, आई कैन बुक अ होटल, पे इट बाय मेक माई ट्रिप किस्ट, I can travel anywhere with Ola postpaid, I can make any payments by Paytm postpaid. सो अगर मेरा फ़ोन खो गया है, अगर मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कहीं पे अकेला हूँ कोई भी जगह पे, पर मेरे पास मेरा फ़ोन है, तो मैं 4 या 5 या 6 ऐप से मुझे जो चाहिए वो एक, आई कैन सर्वाइव फॉर 10 days विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड और विदाउट एनी कैश। एंड दैट्स व्हाट दिस फिनटेक स्टार्टअप्स आर गोइंग टू डू। जो डिजिटल रिवोल्यूशन आ रहा है, दीज पीपल आर रीडिफाइनिंग द वे द क्रेडिट इज बीइंग गिवन। आप इमेजिन करो, हमको जैसे क्रेडिट कल तक मिल रहा था और आज मिल रहा है, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज। यू नो, लाइक देयर इज अ ऐप कॉल्ड मनी टैप। आई थिंक आरबीएल बैंक ने ये मनी टैप किया है। तो मनी टैप इन 5 minutes दे आर गिविंग लोन्स अप टू 5 लाख रुपीज़ और 7 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़। मैं मेरे बिजनेस का जीएसटी नंबर डालूँ, मैं मेरे बिजनेस का आईटीआर अपलोड करता हूँ, तो बूम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव अ फैंटेस्टिक प्रोडक्ट। आप आजकल यू नो लोन इन 2 minutes करके है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर दे स्टार्टेड अ थिंग लोन इन 2 minutes। आप उस वेबसाइट पे जाओ, आप आपके बिजनेस का डिटेल्स डालो, आप आपका आईटीआर रिटर्न्स अपलोड करो, बिजनेस के इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर का मतलब, आप आपके जीएसटी वेबसाइट से अपना अकाउंट लिंक करो, आपका पैन अकाउंट लिंक करो, और यू सी द मैजिक, इन 5 minutes यू विल कम टू नो योर एलिजिबिलिटी। और फिर आप बैंक सिलेक्ट करो, कौन सी बैंक से आपको लोन लेना है, कौन सा बैंक आपको लोन दे सकता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है, आप ओके करो, विद इन 5 days यू विल गेट द मनी इन योर अकाउंट। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट, बेनिफिट ऑफ द फिनटेक कंपनीज और न्यू कंपनीज विच आर कमिंग अप, and the way we are looking into credit is being redefined in the coming years. And I'm sure with all these things together, things are going to be amazing. You know, like मेरा credit card का limit is secondary, but my mobile is better. So even मेरा, you know, let's say if you are using a postpaid phone, okay, तो postpaid phone में भी postpaid का एक credit limit होता है। You know, credit appraisal बैंक्स में ही लिमिटेड नहीं है, इवन कस्टमर्स और बिजनेस में लिमिटेड है। जैसे मेरा कोई कस्टमर है, ठीक है, जिसका मैं एवरेज बिजनेस 1.5 लाख रुपए करता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि हर महीने मैं 1.5 लाख का बिजनेस उसके साथ कर रहा हूँ, तो मेरा अगर 3 लाख 4 लाख का आउटस्टैंडिंग है वो कस्टमर के साथ, तो मुझे चलेगा। तो मैं इंटरनली एज अ बिजनेस भी क्रेडिट अप्रेजल रेगुलर बेसिस पे मेरे कस्टमर्स का करता हूँ।
सिमिलरली मैं आपको एयरटेल या पोस्टपेड का बात करूँ तो हर एक पोस्टपेड प्लान, पोस्टपेड अगर आप कनेक्शन यूज़ करते हो, पोस्टपेड कनेक्शन में एक आपको क्रेडिट लिमिट होता है कि आपको इतने यूजेज तक का, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आप इतना, आपका बिल अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपका सर्विसेज ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपका इतना हो गया तो आपका ब्लॉक हो सकता है। तो वो क्रेडिट लिमिट इवन पोस्टपेड देता है। सो the Airtel postpaid, it gives a credit limit of 10,000, 15,000, 50,000 to their customers. So it's interesting. So this is the way credit is moving. And I think because of the financial inclusiveness, the more of urbanization, the more of new point of sales being added, digitalization of transactions, we will always and always see this growth of credit. And growth of credit means the growth of economy. Credit का मतलब जितना मार्केट में पैसा आएगा उतना तेज़ी से कोई भी देश का इकोनॉमी दौड़ पाएगा। अगर हम आज की बात करें तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। द ओनली एंड ओनली वे टू पम्प आर इकोनॉमी इज़ टू पम्प अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। और इसीलिए हमने देखा है कि RBI ने दे हैव टेकन अ स्टेप ऑफ मेजर्स टू इंश्योर दैट देयर इज़ इनफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो उन्होंने बैंक्स का रेपो, रिवर्स रेपो कम किया, CRR कम किया, जिससे बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़े और वो बैंक कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे। और जितना कस्टमर्स को लोन देगी उतने कस्टमर्स का स्पेंडिंग बढ़ेगा, जितना स्पेंडिंग बढ़ेगा उतना डिमांड जनरेट होगा मार्केट में, जितना डिमांड जनरेट होगा उतना सेल बढ़ेगा, उतना सेल बढ़ेगा उतना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उतना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा उतना रेवेन्यूज़ बढ़ेगा। It will have a ramification on jobs, it ramification liquidity, ramification of everything. So credit of a certain country or credit in a certain country is very, 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 very important. And credit appraisal is a process of identifying whom to give that funds, how to give that funds, and in what manner to give that funds. I hope in today's session we've been able to address that issue. We've been able to address what credit is, what credit system is, credit agency is, personal, institution. I have been trying to put all the major practical aspects to you, and I am sure this has helped you in understanding and getting clarity on the process of credit and your concept of credit for sure. So thank you friends